welcome you today to this very important seminar on leveraging India's recent free trade agreements for enhancing exports. Now, this is a very important topic that we'll be discussing today because as we all know, what we are going through with our trade with USA. You know what has happened, there has been reciprocal tariffs which have been imposed by USA on various countries including India. And in order to safeguard our interest, what we need is we need to diversify. We need to look for new markets because our dependence on USA and Europe has been huge in the sense two-thirds of our exports goes to these two regions. So it is important that we look to other markets of Middle East, Latin America, Africa, Southeast Asia, Northeast Asia, and trade agreements are very important mode of negotiations wherein we can get concessions on tariff vis-a-vis other countries. So to begin with, we have with us our past chairman, Sri Ravi K. Pasi ji. We also have with us Mr. Prince Malik, his member COA EPCH. And we have two guest speakers today with us. We have Sri Ajay Srivastava. He is former additional DGFT and also founder GTRI. Many of you who read Times of India, he is a regular columnist and write a lot about various trade issues, trade agreements. We also have with us Ms. Tamanna Chaturvedi. You all know her. She has been a faculty for a very long time now. She was professor with IFT, but now currently she is vice president with GTPO, Department of Commerce, Government of India. So I would request you all to listen to all the deliberations very carefully, and we'll begin with Tamanna ji and then we'll come to Mr. Srivastava. And once the presentations are over, then probably you can ask your questions. Now, as it is customary, we would like to welcome our guest. May I request Mr. Pasi to welcome Mr. Srivastava with a bouquet of flowers. Present the bouquet of flowers to Tamanna ji. Thank you very much. May I now request Tamanna ji to make a presentation. So, as Rajesh ji has rightly indicated, I and Ajay sir will take this session together. And as he is a veteran in this space in terms of working with commerce and also being a part of a lot of FTAs, Ajay sir. So he has also written a very interesting book and where you can also see about how FTAs can be leveraged. So taking clue, both of us will try to do it together in terms of giving examples from handicraft sector. The way we have structured the session is to understand that अगर आपको FTA को leverage करना है, because government is going to sign a lot of free trade agreements. अभी UK हो गया, अभी Europe already government कर रही है, then you already Peru, Oman, Saudi, right? I was to ask you this question. अगर आपको ये पता लगाना हो कि गवर्नमेंट ने अभी तक कितने FTA साइन करे हैं, कहाँ से पता लगाएंगे? Yes sir. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वेबसाइट. एक्चुअली हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स साइट पे जाएंगे, देखेंगे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है. सो फर्स्ट विल रन थ्रू, चाहे वो UK FTA हो, चाहे UAE हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो. व्हाट आर द पैरामीटर दैट कम्स कि मैं कोई जेम्स एंड ज्वेलरी, लाइक आई वाज सीइंग कनिका, राइट? She was making a very beautiful glass bead work. Some of you may be into metal craft, some may be into gems and jewelry. आपका हर प्रोडक्ट जो कंपनी में मैन्युफैक्चर होता है वो एक पर्टिकुलर 6-digit HSN कोड हो गया, ठीक है? अब whenever a country sign an FTA, ये ज़रूरी नहीं है that if I have signed an FTA as a country, I'm saying if we have signed an FTA with UAE,
दिस मीन्स आपका माल सडनली यूएई में बाहर देना शुरू कर देगा। इफ दैट वुड हैव बीन द केस कि गवर्नमेंट ने इधर एफटीए साइन किया और इधर आपका बाहर मिल गया, तो जापान में 2010 में साइन हुआ, कोरिया में 2009-10 में साइन हुआ, मेरा एक्सपोर्ट तो सिर्फ एफटीए से अगर बढ़ना होता तो बढ़ गया होता। So this session that EPCH has planned is a very beautiful session, that while government is doing what they have to do, but what are company doing for themselves? How well do you understand the market? अभी अगर यूरोप FTA साइन हो जाता है, क्या आप लोगों में से कोई भी एक बंदा तैयार है properly to exploit this European FTA? Let us do a check, a reality check for ourselves. That FTAs is actually giving you a leverage. What leverage? Let us talk about it. So when I talk about the India's major FTAs, how many of you are aware? अच्छा है, दिखाई नहीं दे रहा है. Very good. Let us see how many of you are aware. कितने FTAs हमने साइन करे? किस-किस के साथ? All of you. Total 13 countries के नाम सर quickly, young ones. हाँ, UAE, Malaysia, okay. सिंगापुर, UK तो अभी सब न्यूज़ में है, और कोरिया, जापान, और वेरी गुड, और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड. टोटल 10 कंट्रीज है। नाम सर, नाम आप लोग की एक एक प्रोडक्ट की हम मार्केट एनालिसिस दिखाने वाले हैं, इसलिए पूछ रही हूँ. कोरिया हो गया, जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, देन यूएई हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, थाईलैंड हो गया, पूरा आसियान हो गया, ये पूरा ब्लॉक हो गया, और श्रीलंका हो गया. There is one signed in Norway. हाँ, वेरी गुड सर. क्या नाम है उसका? एफ्टा. नॉर्वे, स्वीडन, राइट, एफ्टा हो गया. वेरी गुड. जब आप यूरोप में जाओगे तो ये कंट्रीज जो है बिल्कुल अलग साइड में कंट्रीज है, कोई देखता भी नहीं, बट इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स. ओके, एंड लास्ट गेस, वी आर मिसिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टअप्स. वेरी इंपॉर्टेंट. यूएस यूरोप में तो 10 सर्टिफिकेशन चाहिए, डिफॉरेस्टेशन, CBAM, ये वो, एक FTA से ही जान छूटी है, बहुत सारी चीजें हैं. बट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू कमर्स, वन FTA दैट यू आर मिसिंग. सर यूरोप तो फिर भी बहुत दूर की बात होगी ना, अभी तो FTA हुआ नहीं है. यस, कोरिया तो बता दिया, कोरिया, जापान, सऊदी अरेबिया, ये भी बता दिया. Is it Peru? देखो बगल वाले कंट्रीज को सब सऊदी अरेबिया. Is it Peru? It used to be Your Pakistan. own SAARC countries, sir. Pakistan, your own SAARC countries. You have SAARC agreement also. So that the risk is the minimal, and a lot of potential of handicrafts even in the SAARC countries. So while when it comes to handicraft, हमारे दिमाग में US और यूरोप के अलावा मार्केट नहीं समझ में आता, because price realization and volume मिल जाता है. But then there are many other markets. And how do we tap these markets? So this is primarily the entire list. presentation आपको मिल जाएगा. This gives you the entire list of FTAs that अभी हमने साइन किए. ये list is not important. What is important is कि मेरी फैक्ट्री में जो माल बन रहा है वो इस FTA में बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, उसको अपन इवैल्यूएट कैसे करते हैं कि आउट ऑफ 25 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स दैट वी हैव साइन, और ओमान होने वाला है, न्यूजीलैंड होने वाला है, GCC होने वाला है, साकू होने वाला है, अफ्रीका होने वाला है, ओमान होने वाला है, जो इतने, पेरू, लैटिन अमेरिका होने वाला है, जो इतने सारी गवर्नमेंट FTA की बौछार ला रही है. एम आई रेडी टू एंटर दैट मार्केट? क्योंकि आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से पहले हो सकता है चाइना का एग्रीमेंट ऑलरेडी हो. तो देयर आर मेनी कंट्रीज जिनका FTA ऑलरेडी है. तो फिर मैं और वो कंट्री, जो तेरा भी FTA मेरा भी FTA, तो फिर मुझे क्या फायदा हुआ? तो बियॉन्ड इम्पोर्ट ड्यूटी दैट यू थिंक, हाउ डू अ फैक्ट्री ओनर is preparing himself to leverage the FTA is the whole storyline. So let us talk about not only the Indian FTA but also globally free trade agreement. Is any global FTA that can impact your business? Exporters हमसे पूछते हैं, मैम आप हमें क्यों परेशान कर रहे हो कि उस कंट्री ने उस कंट्री के साथ FTA साइन किया? ये भी मुझे पता होना चाहिए. मैं तो नोएडा में बैठा एक छोटा सा कारीगर हूँ,
मुझे क्यों पता होना चाहिए कि यूएस का किस किस के साथ एफटीए है? व्हाई डू यू थिंक सो? इट इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट टू नो कि इंडिया ने किसके साथ एफटीए साइन किया, इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू नो कि मैं जिसको बेच रहा हूँ उसने किसके साथ एफटीए साइन किया. व्हाई? So that I can do my costing according. So that I can do my costing. और यही exactly US BTA में हो रहा है, राइट? किसी को 26% दे दिया, उसको फिर 245 कर दिया, फिर चाइना को 145 कर दिया. So why as a company I am keeping a track of what is happening globally? तो अगर आप globally देखोगे, इंडिया का तो आपको हम सबको पता है. Let us see, इधर आपका पूरा एक कवर हो गया नाफ्टा, मैक्सिको, कनाडा, यूएस, नाफ्टा. एक ये छोटा सा रीजन है जो टेक्सटाइल अगर कोई करता हो यहाँ पे, उसका सबसे बड़ी आफत आने वाली है ये रेड कलर की, जिसको बोलते हैं काफ्टा, सेंट्रल अमेरिकन. जितना वॉलमार्ट है वो अपना पूरा ऑर्डर यहाँ पे शिफ्ट करने वाला है पोस्ट बीटीए. अगर इंडिया जो भी अब 90 डेज के पॉज के बाद, तो मेरा जो इंडिया से जो इस बेल्ट से सामान जाता था यूएस, वो सारा यहाँ शिफ्ट हो रहा है. This is your Central American Free Trade Agreement countries, जिसमें आपके कौन सी कंट्रीज आती है? हॉन्डुरस, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला. ये बहुत छोटी छोटी फैक्ट्रीज है. They are becoming factories of a lot of European brands. तो अगर आप लोगों में से कोई गारमेंट में डील कर रहा हो, तो you have to work very hard because ये लोग लॉजिस्टिकली भी क्लोजर हैं और ये लोग 0 ड्यूटी पे जाएंगे या 10% ड्यूटी पे जाएंगे as compared to whatever if 26 come back to us for this particular sector. इससे एक और अपॉर्चुनिटी समझ में आती है कि ये जो प्रोडक्ट, इसको एनालिसिस, इसका फायदा मैं कैसे उठा सकता हूँ. अगर वॉलमार्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं पहले अगर तिरुपुर से फैक्ट्री से माल खरीदता था, अब मैं तिरुपुर से फैक्ट्री से माल नहीं खरीदूंगा, अब मैं उसको हॉन्डुरस या ग्वाटेमाला से बनवाऊंगा. जितने भी आपके यूएस पोलो के, गैप के टी-शर्ट्स आते थे, वो सब इंडिया को मिलता था, अब वो हमें नहीं मिलेगा. इसका फायदा मैं कैसे उठा सकता हूँ? This is also an analysis. Any idea? Can I supply raw material to them? Exactly. So any product that is falling as a zero duty between these two countries, can you become, so पूरा Texprosil, जैसे EPCH है वैसे Texprosil है जो cotton fabrics बेचता है. We are doing an entire road show of cotton fabrics to Guatemala, क्योंकि वहाँ फैक्ट्री तो लगा दी वॉलमार्ट ने, लेकिन कपड़ा कहाँ से आएगा? So it is very important for us to know कि कौन सी opportunity कहाँ से sourcing change हो रही है and how can I as a trader take advantage. तो अगर value added good मेरे और मेरे competitor के बीच में FTA साइन हो गया और उसने उसके लिए कोई value added product के ऊपर import duty 0 कर दिया, as an Indian company can I become a raw material supplier to this guy जहाँ पे फैक्ट्री में माल बनेगा और आगे US निकल जाएगा. That is another way to think about what is happening in the current scenario. What else is important, which is very important? Suppose कल को there are जब आप 90 days के pause के बाद US किसी कंट्री को आपसे कम भी टैरिफ दे सकता है और आपसे ज्यादा भी दे सकता है. इन दोनों का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जिससे कम में हुआ उससे मुझे डर लगेगा और जिससे ज्यादा हुआ तो मुझे लगेगा यार इसका धंधा मुझे आ जाएगा. That is one thing. और ये हो रहा है एग्जैक्टली चाइना के साथ, राइट? अब हो क्या रहा है, जब चाइना के साथ अपना इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ रहा है, एक और एनालिसिस बड़ी इंटरेस्टिंग हम लोगों ने करी कि चाइना से जो जो कंपनी एग्जिट हो रही है, वी वर थिंकिंग कि वो इंडिया आ जाएगी. दे आर ऑल गोइंग टू दीज कंट्रीज, कंबोडिया, वियतनाम. क्यों जा रहे हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्री ऑफ ओरिजिन, आपका पीछे टैग में मेड इन चाइना लगाया कि टी-शर्ट के टैग में मेड इन इंडिया लगाया कि टी-शर्ट के टैग में मेड इन वियतनाम लगाया. इसमें क्या अंतर हो गया? सोचो वॉलमार्ट का एक बार है, यूएस में बैठा है, 3 अलग अलग टैग है. क्या अंतर हो गया? Import duty अंतर हो गया. क्यों? वियतनाम और यूएस में एफटीए हो सकता है, कंबोडिया यूएस में एफटीए नहीं हो सकता है. फिर क्या नुकसान हो गया हमें? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोडक्ट मेड इन इंडिया एंड प्रोडक्ट मेड इन अफ्रीका एंड प्रोडक्ट मेड इन कंबोडिया? क्या अंतर हो गया? मेड इन इंडिया, मेड इन बांग्लादेश, क्या अंतर हो गया? इमेज ऑफ द कंट्री, इमेज. और सोचो सर, धंधे की बात पे सोचो सर, परसेप्शन तो ठीक है, अपन आपको ब्रांडिंग करवा वैसे क्या एलडीसी कंट्री को आता है, बांग्लादेश एलडीसी कंट्री में आ गया. तो जैसे ही कोई कॉम्पीटिंग कंट्री लीस्ट डेवलप कंट्री हो गया, बांग्लादेश लीस्ट डेवलप कंट्री हो गया, आपका अफ्रीका लीस्ट डेवलप हो गया, कंबोडिया, वियतनाम लीस्ट डेवलप, तो वो क्या करेगा?
FTA नहीं भी है तो भी वो जीरो ड्यूटी पे क्यों जाएगा? विदाउट FTA भी वो जीरो ड्यूटी पे जा सकता है, विच इज कॉल्ड एज GSP बेनिफिट, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। तो एक वेबसाइट का नाम लिख लीजिए सर फटाफट। ये एक तो कॉन्सेप्ट है और सोर्स भी है। अब साथ साथ लिखते रहिए कि कोई एक्सपोर्टर को अगर ऑन द स्पॉट फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मोबाइल से देखना हो कि जो HS कोड मैं US बेच रहा हूँ वो HS कोड कोई और बेच रहा है, उसको कितना दाम लग रहा है, उसको कितनी ड्यूटी लग रही है, तो इसकी वेबसाइट का नाम है macmap.org, macmap.org। टाइम मिला तो हम लोग फटाफट इसको देख भी लेंगे। macmap.org फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है सर। HS कोड डालिए, US को एज एन इम्पोर्टर लिखिए, दुनिया भर को क्या इम्पोर्ट ड्यूटी आ रही है आपको वही पता चल जाएगा कि आपका FTA है कि नहीं। आप डेवलपिंग कंट्री हो, वही माल अगर बांग्लादेश बेच रहा है वो 0 पे जा रहा है, आप 12% पे जा रहे हो। आपको अपनी कॉस्टिंग समझ में आ जाएगी कि अगर मैंने 12% की कॉस्टिंग को मैनेज नहीं किया तो मैं अगर फेयर में चला भी गया तो भी बायर विल नॉट बी वर्किंग विद मी, बिकॉज उसके दिमाग में बायर एक्सरसाइज ऑलरेडी करके आ रहा है कि उसको इंडिया से खरीदने में और बांग्लादेश से खरीदने में कितना ड्यूटी का डिफरेंस पड़ रहा है। तो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मैंने तो FTA कर लिया, बट और किस किस का FTA चल रहा है, उनके बीच में क्या चल रहा है, मुझे क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चौथी चीज, अगर चाइना को मेरे से ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ गई तो अब चाइना क्या करेगा? वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चाइना क्या कर सकता है? नहीं, चाइना एक तो एक्सपोज करेगा, जो उसने रशिया को एक्सपोज कर दिया, इतना सारा माल हमारे यहाँ बनता है, वो अलग बात है। चलो, अगर चाइना को US में माल बेचना हो तो क्या करेगा? He is going to make investments in other countries. He will make investments in a country कि अगर मैं अपने यहाँ जाऊँगा तो 45%, इंडिया से करता हूँ तो 26%, तो मैं या तो वियतनाम शिफ्ट हो जाता हूँ या फिर इंडिया शिफ्ट हो जाता हूँ। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री इज कीपिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक। अगर एक्सपोर्टर्स ऐसा सोच भी रहे हैं कि हम चाइना की किसी कंपनी के साथ एक JV कर लेते हैं, उनका माल अपने फैक्ट्री में बनवाते हैं, ये भी US बहुत इंटेलिजेंटली ट्रेस बैक करेगा। तो इस फ्लॉ में और इस पूरे गेम में मत फंसिएगा। अगर चाइना आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते भी हैं कि आपका माल मैं आपकी फैक्ट्री में बनाता हूँ, पैसा मैं लगाऊंगा, बड़ा फैक्ट्री होगी, US आप फैक्ट्री आपका, कंट्री ऑफ ओरिजिन आपका, बट इफ इट इज अ चाइनीज इन्वेस्टमेंट दे आर कीपिंग ट्रैक ऑफ इट। बिवेयर ऑफ सच अरेंजमेंट्स। दिस इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। बिवेयर, क्योंकि आज नहीं तो कल इट विल बी ट्रेस बैक कि फाइनली इन्वेस्टमेंट कौन सी कंट्री से आ रहा है। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड। ये नाफ्टा हो गया सर, ये पूरा लैटिन अमेरिका हो गया, इसमें इंडिया का ब्राजील, यूरुग्वे, पैराग्वे के साथ है। ये आप लोग काफी टैप नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज एन इमर्जिंग मार्केट एंड टेल यू सब फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाउ यू कैन टैप इनटू मर्कोसर ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया का है। फिर अफ्रीका 55 कंट्रीज है सर, इसमें खुद के बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसका भी हम फायदा उठा सकते हैं। कई बार एक्सपोर्टर हमसे ये पूछते हैं कि मैम इंडिया का तो अफ्रीका के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, तो हम क्यों ध्यान रखें कि इथियोपिया ने सूडान के साथ क्या किया, चाड ने लीबिया के साथ क्या किया, ये तो उनके आपस की बात है ना। मैं तो इंडिया में बैठ के फैक्ट्री चला रहा हूँ, मुझे क्या फायदा होगा? आपको भी फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? प्लीज अंडरस्टैंड। इन 19 कंट्री ने, लाल रंग के आपको पूरा येलो दिख रहा है, इन पूरी कंट्री ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। आप सोच के देखो सर, आप तो सब बिजनेसमैन हो, दिमाग लगाओ, आपको क्या फायदा है? उन 19 कंट्री ने आपस में कुछ ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। मेरी फैक्ट्री नोएडा में है, सहारनपुर में है, मैं क्या फर्क पड़ रहा है? व्हाई शुड आई कीप ट्रैक? किसने किसके साथ किया? मुझे क्या फायदा होगा? मैं आपको बहुत सारे एंगल्स दिखा रही हूँ FTA के। आपको अभी तक FTA लगता होगा कि FTA का मतलब है प्रोडक्ट इंडिया में बना, कल तक 12% पे जा रहा था, आज FTA साइन हो गया तो मैं 0 पे जाऊंगा। अभी तक आपको सिर्फ FTA इतना ही पता होगा, ठीक है? आई एम गिविंग यू मल्टीपल पर्सपेक्टिव टू गेट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ कंप्लीटेड एक्टिविटी। बस बताइए, किसी ने किसी के साथ एग्रीमेंट साइन कर दिया, और ये बहुत मल्टीपल केस स्टडीज ऑफ हाउ इंडियन कंपनीज ने, छोटे स्टार्टअप्स ने इसका फायदा उठाया
कि ये सारा FTA का इन्होंने इन लोगों ने आपस में ट्रेड एग्रीमेंट किया, 19 कंट्री ने मिलकर आपस में ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। आपने क्या करूँगा इसके मतलब सर you actually own only one small collaboration with any one country, one buyer. Your product का country of origin changes. आपका प्रोडक्ट अगर इंडिया से जाता है उस कंट्री में तो 26% ड्यूटी है। अगर आपने कुछ नहीं किया, उस कंट्री में जाके एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर लिया, अब आपकी कंट्री का ओरिजिन चेंज हो गया, आप पूरे 19 कंट्री में फ्री में घूमोगे। So this is another taking leverage of somebody else's FTA, keeping in mind the value addition and rules of origin concept. No, but the duty would be imposed as soon as the goods reach Africa first. सर आप क्या कर रहे हो? आप गुड्स ले ही नहीं जा रहे हो ना, आप SKD यूनिट्स लेके जा रहे हो, असेंबलिंग भी कर सकते हो, तो आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज हो गया। और जैसे आपका वैल्यू एड, सपोज ये कनिका बीड वर्क कर रही है, अभी तो ये अपनी फैक्ट्री में बैठ के बीड वर्क करेगी, तो जब ये बीड वर्क यहाँ से बेचेगी तो हो सकता है 26%, 28%, 30% का ड्यूटी हो। अगर इसने वहाँ के कारीगर से या तो आधा काम करा के वहाँ पे सिर्फ इसने फ्रेमिंग करा दी और 5% रूल्स ऑफ ओरिजिन को कंप्लाई कर दिया, अब इसका प्रोडक्ट मेड इन इथियोपिया हो गया। अब ये एवरीथिंग बट आर्म्स, अफ्रीका और यूरोप के बीच में एक अग्रीमेंट है, एवरीथिंग बट आर्म्स एंड एमिनिशन छोड़ के हर प्रोडक्ट, अफ्रीका का हर प्रोडक्ट यूरोप में 0 ड्यूटी पे जाएगा। तो अगर आपने इथियोपिया में फाइनली ट्रेनिंग करा ली तो इथियोपिया का माल तो यूरोप में 0 ड्यूटी पे जाएगा, तो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बची, आपकी पूरी 26%, 28% ड्यूटी जो यूरोप में थी। तो आप लोग वेट क्यों कर रहे हो कि जब यूरोप FTA साइन होगा तब हम इंडिया से यूरोप माल बेचेंगे। तो दिस इज स्मार्ट वेज ऑफ एंट्रिंग एंड लेवरेजिंग, कि अगर अफ्रीका और यूरोप के बीच में FTA है तो मैं उसका फायदा कैसे उठा सकता हूँ। मेरा जब FTA आएगा तब आप में आएगा ना, अभी तो मैं फॉरेन कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करके आई कैन लुक फॉरवर्ड फॉर दैट मार्केट। ये भी बहुत कंपनीज कर रही हैं, छोटी छोटी। आई गिव एन एग्जांपल, ये लोग ग्रीन प्लाई आप देखते हो, ये लोग प्लाई वाले जो बनाते हैं, पहले ये लोग इंडिया में प्लाई बनाते थे, पहले ये लोग यहाँ से अफ्रीका की कंट्री घाना, वहाँ से पहले ये लोग टिम्बर लाते थे, इंडिया में प्लाईवुड बनती थी, उसके बाद ये इंडिया में बेचते थे और एक्सपोर्ट करते थे। अब इन्होंने अपनी फैक्ट्री ही वहाँ शिफ्ट कर ली है, बनाते वहाँ हैं, वहाँ से यूरोप भी जाता है, उनका अलग FTA है, पूरा कॉमेसा जाता है, 19 कंट्री अफ्रीका में माल बनता है और वहाँ से ये लोग US भी चले जाते हैं, लॉजिस्टिकली क्लोजर, और वहीं से माल बन के इंडियन मार्केट में भी आ जाता है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अ लॉट ऑफ यूरोपियन कंपनीज डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं जाती हैं, वो कहाँ जाएंगी सर? वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी। ये आपका ASEAN है ना, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे वियतनाम है, और ये वियतनाम का यहाँ पे एक पोर्ट है कॉल्ड दनांग पोर्ट। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 3 या 4 दिन का टाइम लगता है। तो अगर यूरोप का कोई फैक्ट्री ये लोग अपने दनांग में खोल लेते हैं, यहाँ पे बेसिक माल से फाइनल पैकेजिंग कर दी और ASEAN और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो FTA है उसका फायदा करा के पूरा ऑस्ट्रेलिया मार्केट कैप्चर कर रखा है सारे यूरोपियन ब्रांड्स ने। So these are ways, and yes sir, please. Don't you think there should be a 50% valuation at least? हाँ तो सर रूल्स ऑफ ओरिजिन तो मैंने बोला ना, इन कंट्रीज में क्या है सर, 10%, 15%, यही तो स्मार्ट गेम है कि आप देखो कि आपका access code क्या है। That's fine, I understand that, but if it has to be exported from there to third party or a third country for that matter, there should be a 50% at It least is not necessary, value sir. addition. Otherwise, it's not made in that country. सर हर FTA का रूल्स ऑफ ओरिजिन का वैल्यू एडिशन का परसेंटेज अलग है। Okay, so सब में FTA सारे सर आप कोरिया जाइए 35 to 40% वैल्यू एडिशन है, हर में 50% कहाँ है? technically that is what is understood. नहीं, I'll tell you, ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी वो भी बात, कहीं कहीं तो सिर्फ 10% ही है सर। That you can just add. Just do 10% then country of So do origin you have a changes listing of वही that? तो मैप पे मिलती है। और 10% क्या वैल्यू एडिशन होता है? कुछ भी वैल्यू उसका भी तरीका है, वो भी हम देखेंगे। उसमें 5-6 क्राइटेरिया होते हैं। होली ओन्ड होता है कि आपको सब कुछ इंडिया अपने से करना पड़ेगा, कुछ होता है कि आप 10% वैल्यू एडिशन, किसी में तो सर वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट होता है CTC, चेंज इन टैरिफ क्लासिफिकेशन। आपकी इंपोर्ट शिपिंग बिल में X 6 डिजिट कोड है और बाहर वाले में HS कोड चेंज हो गया, आपने क्लासिफिकेशन ही चेंज कर दिया। बहुत सारे FTAs में सिर्फ CTC भी होता है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर जो एक्सपोर्टर्स को लगता है कि हमें ये प्रोसेस इसलिए डिफिकल्ट लगता है, आपको लगता है क्या मगजमारी है उस कंट्री में आपको 50% वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा. इट इज़ अ मिथ. 50% इज इन सर्टेन कॉन्सेप्ट, बट 35 भी है, कहीं 10 भी है, कहीं 20 भी है. तो हर रूल्स ऑफ ओरिजिन बिटवीन द टू कंट्रीज देयर आर डिफरेंट रूल्स ऑफ ओरिजिन नॉर्म्स. वो भी इंटरनेट पता चल जाता है. मैम क्या ये पॉसिबल है कि हम ऑफिस से वहाँ खोल ले, बिल्कुल कर सकते हैं. प्रोडक्शन यहाँ से हम बिल्कुल डायरेक्टली कर वहाँ पे सकते हैं. करें, लेकिन फिर अपने कस्टम्स में यहाँ पर बॉक्सेस के ऊपर मेड इन इंडिया लिखना जरूरी है, फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन का सर चक्कर कंट्री पड़ेगा. ऑफ ओरिजिन जब आप यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे तो मेड इन इंडिया ही होगा. जब आप वहाँ जाओगे नहीं, हम वहाँ पे भेजेंगे ना. आप देखिए प्रोडक्शन वायबिलिटी और ऑफिस ओपनिंग वायबिलिटी वहाँ पर यू करना जस्ट है. स्टार्ट उसमें मिनिमम ऑपरेशन. अजय सर यू वांट टू कमेंट? पहले प्रेजेंटेशन कर लेते, मेरे ख्याल से नहीं तो हो जाएगा. ओके, सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज दैट. अच्छा अब आता है सर, मैं नहीं है इसमें थोड़ा इजी आ रहा है. आई थिंक इट इज लाइट को थोड़ा देखो. ये थोड़ा सा इजी. एटलीस्ट आई विल जस्ट कंटिन्यू द डिस्कशन. Okay, we'll talk about rules of origin issues. Whenever a country sign an FTA, whether Mercosur हुआ, UAE हुआ, Australia हुआ, आपको क्या लगता है? Let us take 3 people from this room. आपका क्या product है sir? What's your name and your product? My name is Ravi and we do paper products basically. Paper product. Chapter 48. Yes. Okay. Fashion jewelry. Chapter 71. Iron and Iron. iron and 72. 73. चलो 48, 72, 71. 3 people sitting in the room. You get to read a newspaper that भारत सरकार ने यूके के साथ FTA साइन कर लिया. इन तीनों के लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी एक ही होगी. इन तीनों को खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, या वो सरकार तो कुछ भी करती रहती है. छोड़ो. बताओ, how will you react sir? It's a positive news definitely. All 3 of you? Well, I think for me it is, yes. Anybody else in paper in this room, or gems and jewelry in this room, or iron and steel, wrought iron? कोई और भी है सर? आपके कॉम्पिटिटर तो यही मिल गए सर. Yes? हाँ. मैम बहुत है यहाँ पर. बहुत है. चलो बताइए. मेटल्स के तो काफी सारे लोग हैं. मेटल फर्नीचर सेम जो रवि ये कर रहे हैं सर. रॉट आयरन टाइप ऐसा कुछ है? हमारा 94. 94. आपका सर? 7326 7 तो 3 में ही आ गया ना. 7616 मेटल्स है काफी सारे हैं बेसिकली. I'm bringing home a very interesting point. Every person on this room is dealing with one typical 6-digit code. When I say that India UK FTA sign हुआ, तो आपके मुंह पे एकदम स्माइल आ जाती है ये सोच के कि चाहे रवि जी हो, चाहे आप हो, प्रोडक्ट चाहे फैक्ट्री में कुछ भी बन रहा हो, FTA का मतलब है मेरा तो ड्यूटी रेट अब 0 होने वाला है. ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है बिकॉज FTA में एक कॉन्सेप्ट होता है कि सपोज आज मैं अगर सिल्क गारमेंट का बिजनेस करता हूँ और मैंने थाईलैंड के साथ या एशियन कंट्री के साथ FTA साइन कर लिया, isn't it? तो ऐसी is it not a possibility that जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो उस कंट्री में भी माल बन रहा हो? थाईलैंड इज गुड इन सिल्क, कंबोडिया गुड इन सिल्क, इंडोनेशिया गुड इन सिल्क. तो वो कंट्री को डर नहीं लगेगा कि अगर मैंने 0 कर दिया तो भैया इंडिया का पूरा सिल्क मेरे यहाँ आ जाएगा, और अगर मेरे को डर लगेगा कि मलेशिया का सिल्क इंडिया में आ जाएगा. तो देर आर सर्टेन कमोडिटी जिसमें तू भी अच्छा मैं भी अच्छा, और FTA तो साइन होना ही है. तो फिर मैं क्या करूँगा? FTA साइन ना करूँ? ऐसा तो नहीं है. कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हो कि तेरे पास ना हो मेरे पास हो, मेरे पास ना हो तेरे पास हो, ऐसा भी हो सकता है. तो प्लीज इसको गांठ बांध लीजिए. एवरी FTA डज नॉट मीन कि हर HS कोड की ड्यूटी 0 हो जाती है. एवरी FTA हैज गॉट अ ओपन लिस्ट, इसको हम पॉजिटिव लिस्ट बोलते हैं, और कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो कि नेगेटिव लिस्ट में होते हैं. उसका मतलब क्या हो गया? अगर आपकी फैक्ट्री में जो माल बन रहा है उसका HS कोड उस FTA में पॉजिटिव लिस्ट में हो तभी आपको 0 ड्यूटी बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. इसमें मायूस होने की बात इसलिए नहीं है. मैंने इसीलिए पूछा कि आप दोनों में से अगर एक बंदा करता है 731120, एक करता है 731130, क्या पॉसिबिलिटी है? आई एम नॉट टीचिंग यू रॉन्ग मीन्स, बट स्मॉल ट्वीक in your HS code I'll give you a very interesting example. I was doing a session with Ludhiana Knitwear Cluster.
ये लोग काफ़ी स्वेटर बेचते थे यूएस, और यूएस और इंडिया के बीच में तो एफटीए है नहीं। तो इन्होंने बोला कि मैम हम यूएस में धंधा नहीं कर पा रहे क्योंकि मेक्सिको मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिंग प्लेयर है। तो हमने नाफ्टा अग्रीमेंट को चेक किया कि इसमें कोई तो प्रोडक्ट होगा जो नेगेटिव लिस्ट में होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब मेरा एफटीए नहीं है, मुझे नुकसान किससे हो रहा है? जिसका है उससे मुझे नुकसान हो रहा है। तो जिसका है उसको देखा 87 पेज, एक एचएस कोड चेक किया। हमने बोला सर आप उससे पे एक काम करो, आप इस 100% स्वेटर में 1% सिल्क का धागा लगा दो। और एनआईडी के बच्चों को लेके सर उन्होंने क्या डिजाइन बनाई है, उससे क्या हुआ 100% वूल का एचएस कोड अलग है, और 100% वूल में अगर 85% वूल एंड 15% सिल्क लगा देते हैं तो आपका एचएस कोड चेंज हो गया। वो नाफ्टा एग्रीमेंट में नेगेटिव लिस्ट में चला गया। तो उनको भी एमएफएन, हमको भी एमएफएन, मस्त धंधा हो रहा है। तो इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट ऑफ यू टू लेवरेज द एफटीएज। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। एवरी एफटीए इज यूनिक, एवरी एफटीए डज नॉट मीन whatever was the duty yesterday, today it becomes zero। तो आपकी इंटेलिजेंस ये होनी चाहिए भैया, कॉमर्स मिनिस्ट्री की साइट पे जाओ, सरकार ऐसे ही पीडीएफ डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर देती है। ये उसका आप लोगों का काम है कि भैया मैं अपनी फैक्ट्री में एक बंदे को लगाऊं, कॉमर्स मिनिस्ट्री की साइट पे जा, पूरा 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, आपके मतलब का जो चैप्टर है भाई 73 चैप्टर में देख, रॉट आयरन में 25 एफटीए में कौन प्रोडक्ट ओपन है, कौन प्रोडक्ट नेगेटिव है, उसकी डिटेलिंग ले आ भाई। और हम देखने लगेंगे कि भैया जो 000 है, तो हम लोग ऐसा कंसल्टेंट यही काम करते हैं, सर ये प्रोडक्ट दुबई निकाल दो, ये प्रोडक्ट में थोड़ी ट्वीक कर दो तो मलेशिया निकल जाएगा, और सब में 0 ड्यूटी मिलेगा। सर मैम एक क्वेश्चन ये भी है, कुछ एचएस कोड है जो इंडिया में है ही नहीं, जैसे रिलीजियस गुड्स के लिए कुछ सेपरेट एचएस कोड नहीं है। ये पर सर होता है, जैसे अभी मखाना था, जब मखाना बोर्ड बना तो हमने कोशिश करके एक नया एचएस कोड आइडेंटिफाई कराया है, क्योंकि मखाना का इतना एक्सपोर्ट था लेकिन उसका एचएस कोड नहीं था। रेमंड्स को ये प्रॉब्लम है कि मैम जब हम खादी एक्सपोर्ट करते हैं तो एक यूरोप के एक ब्रांड में स्टोर में खादी की शर्ट टंगी हुई है और एक नॉर्मल शर्ट टंगी हुई है। मेरी शर्ट तो महंगी है, तो बंदा आता है शर्ट देखता है, लुक एंड फील तो सेम ही है, अब उसको कौन समझा भैया ये चरखे पे बनी है, हैंडमेड है, ये तो आपके साथ भी खेल है। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने अभी एक रिक्वेस्ट करी है कि हैंडमेड के लिए अलग एचएस कोड दिया जाए। तो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि एचएस कोड ही अगर अलग होगा तो बायर के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा दैट दिस इज अ हैंडमेड। यूएस में अवेलेबल है एचएस कोड वाला। अब बेसिकली क्या होता है, हम रिलीजियस गुड जो है वो बेसिकली आर्टिस्टिक हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ मेटल के अंदर दिस इज व्हाट वी हैव टू पुश, देयर इज अ प्रोविजन टू गेट अ सेपरेट कोड। खादी के लिए नया कोड आ गया। अब बायर को पता है कि अगर ये एचएस कोड में आ रहा है तो ये चरखे पे बनी है और वो पैसा दे रहा है, और उस पे ब्लॉकचेन पे हम बात भी कर रहे थे टी टाइम पे, टाटा ने इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है कि अगर शर्ट चरखे से बनी है तो बारकोड लगा देता है। आप लोग अपने हैंडमेड के लिए भी यही कर सकते हो, बारकोड लगा देता है, जैसे ही वो स्कैन करता है वो शर्ट जिस वीवर ने चरखे पे बनाई है उसका पूरा वीडियो आ जाता है, बंदा उसको 6 गुना प्राइस पे खरीदता है। तो दीज आर ऑल इंटरेस्टिंग वेज टू सेल योर प्रोडक्ट, एंड हैंडीक्राफ्ट में तो एक बहुत बड़ी बात है। और एफटीए में अगर ऐसे प्रोडक्ट को 0 ड्यूटी मिल गई तो बहुत ही बड़ी बात है। तो प्लीज नोट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन लिस्ट एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव लिस्ट। उस एफटीए में टाइम बर्बाद मत करिएगा, फेयर जाके बाहर ढूंढ के अगर आपका एचएस कोड उस एफटीए में नेगेटिव लिस्ट में हो, और फेयर में वही प्रोडक्ट लेकर जाइए जो उस एफटीए में ओपन लिस्ट में हो। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की साइट पे इंटरनेशनल ट्रेड का एक आइकन होता है, उसमें ट्रेड एग्रीमेंट है, सारे ट्रेड एग्रीमेंट के पीडीएफ डॉक्यूमेंट एचएस कोड वाइज सब लिखे होते हैं। उसको ध्यान से पढ़ के समझ के फिर आगे बढ़िएगा तो रिलेटेड एफटीए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया सर? दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज कि अगर एफटीए में even if your product suppose पूरा 73 सर ओपन कैटेगरी में आ गया तो आप भी खुश, आप भी खुश। अब अंतर कैसे होगा? अब अंतर होता है कि even if your product is in the open category तो आप जब शिपमेंट लेके जाओगे आप एक्सपेक्ट करोगे कि कस्टम आपका 0 ड्यूटी क्लियरेंस पे हो जाए, है ना? पर कस्टम वाला बोलता है नहीं यार, ये क्लियरेंस तो आपका एमएफएन में ही होगा। क्यों होगा? ओनली एंड ओनली बिकॉज आप ये ध्यान देकर नहीं आए कि ओपन, तो उसने बोला कि ओपन तो है, लेकिन वो बोलेगा भाई आप तो
वो है ना म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड टर्म्स एंड कंडीशन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आर आल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड टर्म्स एंड कंडीशन, राइट। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन एक हो गया ओपन लिस्ट, नेगेटिव लिस्ट, एक हो गया इवन इफ योर प्रोडक्ट इज इन ओपन लिस्ट, उसमें होता है कि भैया ओपन तो ठीक है, मैंने भारत को बोला मैं इंपोर्ट ड्यूटी कम करूंगा, लेकिन मैं भैया आज कम करूंगा, मैं 1 साल बाद करूंगा, कि मैं 5 साल बाद करूंगा, ये तो एक्सपोर्टर देख कर ही नहीं आया कॉमर्स मिनिस्ट्री की साइड पे। किसकी गलती? सरकार ने तो पीडीएफ डॉक्यूमेंट में लिखा है, ओपन है, E0 है, फेज 1 है, A है, B है, C है। इसके मतलब आप अपनी एक्सपोर्ट की प्लानिंग FTA मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट, फैक्ट्री में तो 10 HS कोड के माल बन रहे हैं, बट इस कंट्री के लिए ये वाला HS कोड ओपन फेज A में है, ये दुबई के फेज B में है, तो मैं पहले 5 साल दुबई में ये बेचूंगा, तब तक फैक्ट्री में इसको बनाऊंगा, ये फेज B में आ रहा है, ये 2 साल बाद ये खुल जाएगा, 3 साल बाद ये मलेशिया में खुल जाएगा, 3 साल बाद ये आसियान में खुल जाएगा। ये प्लानिंग करके प्रोडक्शन इन्वेंट्री क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड एज फेज लेवल ऑफ रिडक्शन। So that is one thing that is very important to understand. To and we read one document, I tell you information आपको readily, easily मिल जाती है on click of your desktop. Okay? Rules of origin जो सर पूछ रहे थे, how many of you somebody can help me with rules of origin? Anybody sir? आप में से कोई ऐसा एक्सपोर्टर है जो कि कोई imported raw material यूज कर रहा हो? Yes, आप जापान, आपका जो बीड है, अब सपोज ये एक प्रोडक्ट बहुत सुंदर सा प्रोडक्ट बनाती है, हैंडमेड प्रोडक्ट है, लेकिन इनके जो बीड्स है वो जापान से आते हैं। अब ये बोले कि मैम जापान से मैंने बीड लाया, यहाँ से कारीगर से बनवाया, मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, अब मैं इसको UK FTA में बेचना चाहती हूँ। जब ये UK FTA में गई, इसका प्रोडक्ट ओपन कैटेगरी में है, इसका प्रोडक्ट E0 कैटेगरी में है, मतलब डे 0 ही इंपोर्ट ड्यूटी 0 हो गई। लेकिन जब ये कस्टम पे माल UK गया तो कस्टम ने बोल दिया ये तो भैया ये तो 9% 12% पे छूटेगा सर, आपका माल 0 पे नहीं छूटेगा। अब आप कंफ्यूज हो गए, आप तो कॉमर्स मिनिस्ट्री साइट पढ़ के आए थे, मेरा प्रोडक्ट भी ठीक है, HS कोड भी ठीक है, लेकिन देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड है रूल्स ऑफ ओरिजिन, कि ऐसा तो नहीं है कि आपने क्या क्या, जो सर भी पूछ रहे थे, आपने चाइना से माल इंपोर्ट किया, भाई चाइना अगर डायरेक्ट US भेजेगा तो 245 ड्यूटी लग रही है, तो चाइना ने पहले इंडिया भेजा, आपको पटा लिया, आपने कहा ठीक है तो आप यहाँ पे तेरा सिर्फ लेबल चेंज कर दूंगा, तो आपने मेड इन चाइना का लेबल हटाया, मेड इन इंडिया का लेबल लगाया। ऐसे भी लोग सोच रहे हैं आजकल, मेड इन इंडिया का लेबल लगाया और इसको निकाल दिया, हो रहा है इंडिया टू श्रीलंका, श्रीलंका टू हो रहा है, इंडिया टू बांग्लादेश, बांग्लादेश का GS इंडिया से जाएंगे तो 12% ड्यूटी, जब UK FTA नहीं हुआ था, और इंडिया टू बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट है, तो 0 ड्यूटी पे तिरुपुर की टी-शर्ट ले गए बांग्लादेश, बांग्लादेश लीस्ट डेवलप कंट्री है, वहां से उन्होंने यूरोप भेजा तो 12% का तो स्ट्रेट फायदा हो गया। इज इट लीगल? दिस इज नॉट लीगल, दिस इज नॉट सस्टेनेबल। तो ना आप ऐसा करिए और ना ही किसी और को आपको एज अ ट्रांजिट कंट्री यूज करने दीजिए। दे आर पिगीबैकिंग यू बाय गिविंग यू सम बेसिक इनिशियल एडवांटेज। रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि अगर मैं कोई माल UK भेज रहा हूँ, अब 100% वो माल आपकी फैक्ट्री में बने है तो पॉसिबल कभी कभी नहीं भी हो सकता है। भाई मैं अगर शर्ट बेच रहा हूँ तो हो सकता है मुझे बटन श्रीलंका से लानी पड़े, हो सकता है धागा इंडिया में मिल रहा है, लेकिन जो कपड़ा आपके डी कैथमर को चाहिए वो कपड़ा तो यहाँ पे मिलता ही नहीं जिम में, वो तो मुझे ताइवान से लाना पड़ेगा। तो इस बात को इंटरनेशनल रूल बनाया गया। क्या रूल बनाया गया कि ठीक है मेरे और आपके बीच में FTA साइन हो गया, तो आपने बोला कि इंडिया को मैं 0 ड्यूटी एक्सेस देता हूँ, लेकिन वो नीचे बंदा बैठ के सुन रहा है कि ये तो पाकिस्तान का है, वो कहता है मैं तेरे को नहीं दूंगा। तभी बोलेगा तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इनके साथ मैं तो फायदा उठाता हूँ, मैं अपनी फैक्ट्री में माल बनाऊंगा, सिर्फ कॉलर वहाँ लगाऊंगा। तो अब इस चीज को अलाउ WTO करता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है किसी भी FTA में रूल्स ऑफ ओरिजिन का एक क्लॉज होता है, क्योंकि ये समझ में आता है टू मैन्युफैक्चर अ वैल्यू एडेड गुड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि फैक्ट्री में आपको कपड़ा चाहिए हो सकता है, धागा चाहिए हो सकता है, मशीन चाहिए हो सकता है, जो आप बाहर से इंपोर्ट करोगे। तो 100% इंडियन की ओरिजिन हो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है।
तो आप अगर मेरे और आपके बीच में FTA साइन हुआ और रूल्स ऑफ ओरिजिन हो गया 40%, ये इंटरनेट में मिलता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री साइट में मिलता है, हो गया 40%। इसके मतलब क्या हुआ सर, 100 रुपए के माल में अगर 40% रूल्स ऑफ ओरिजिन है तो मैं 60 रुपए का माल इंपोर्ट कर सकता हूँ। इंडिया में 40% की अपनी कारीगर लगाऊं, लेबर को दूं, कुछ और लगाऊं, 100 रुपए की फाइनल प्रोडक्ट पे 60 रुपए का माल मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। 40 रुपए का माल मुझे ऑफिशियली ऑडिट करके सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि तुमने इंडिया में 40 रुपए का वैल्यूएशन किया। ठीक है, ये FIO भी देता है, टेक्सटाइल भी देती है, हर जगह ये सर हैंडीक्राफ्ट के लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन कौन देता है? और DC हैंडीक्राफ्ट भी देता है, DC हैंडीक्राफ्ट FIO भी देता है, FIO भी देता है, FIO भी देता है, CCI भी देता है, DC हैंडीक्राफ्ट देता है, FIO भी देता है कि अगर आप कोई रॉ मटेरियल लेते हो और फिर उसको अपनी फैक्ट्री में वैल्यूएशन करते हो तो आपने कितने का माल खरीदा, उसका कितना परसेंटेज है इतनी टोटल फाइनल गुड, उसका ऑडिट होता है, उस हिसाब से रूल्स ऑफ ओरिजिन का ठप्पा लगता है। जब आपका बायर, आपका शिपमेंट पहुंच गया UK, जब वो माल छुड़ाने आएगा तो उसके पास आपके डॉक्यूमेंट होंगे, उस वक्त अगर उसके पास रूल्स ऑफ ओरिजिन का सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो कस्टम 12% देगी, माल छुड़वाएगा, 0 पे नहीं छुड़वाएगा। दिस इज दैट इम्पोर्टेंट का सर्टिफिकेट। तो कुछ भी माल करने से पहले एक तो रूल्स ऑफ हाँ रूल्स ऑफ ओरिजिन का सर्टिफिकेट तो लगेगा ही बाय डिफॉल्ट, जैसे हर yes because this is about every shipment, ठीक है। so that is called the rules of origin which is very important। ये 3 टाइप का होता है, हर FTA में जरूरी नहीं है सर से 50% आप बोल रहे हो, हर FTA में किसी में 35 भी है, किसी में 40 भी है, कोरिया के साथ 35-40% है, ASEAN के पास 40% है। ऐसे 3 टाइप के होते हैं, wholly obtained good, substantial transformation criteria एंड मिनिमम ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जो डॉक्यूमेंट खोल के देखेंगे अगर WO लिखा हो, मतलब आप 1 रुपए का माल भी पीछे से इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एवरीथिंग हैज टू बी इंडियन ओरिजिन, होली ऑब्टेन्ड इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन। दूसरा आता है सब्सटैंशियल ट्रांसफॉर्मेशन क्राइटेरिया। ऐसा तो नहीं है कि आपने साथ पूरा बना बनाया माल ले लिया, इंडिया में आपने सिर्फ उसकी लेबलिंग और पैकेजिंग कर दी। तो दिस इज मिनिमम ट्रांसफॉर्मेशन क्राइटेरिया कि किसको वैल्यूएशन माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, ये भी FTA में डिसाइड होता है। प्लीज एज आई सेड, ये मजाक की बात नहीं है, रीड टर्म्स एंड कंडीशन, ये एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है। दिस इज अ सब्सटैंशियल ट्रांसफॉर्मेशन क्राइटेरिया एंड मिनिमम ऑपरेशन कि आपको किसका वैल्यूएशन करना है। एक और कॉन्सेप्ट होता है एज आई सेड CTC, चेंज इन टैरिफ क्लासिफिकेशन, कि आपने चैप्टर 52 इंपोर्ट किया विच इज रॉ कॉटन फैब्रिक इंपोर्ट कर लिया और एक्सपोर्ट किया चैप्टर 61 विच इज अ टी-शर्ट। तो बंदे को दिख रहा है ना, इंपोर्ट किया कपड़ा जो कि 52 में आता है, एक्सपोर्ट किया टी-शर्ट जो कि 61 या 62 में आता है। तो आपने 52 को 62 में कन्वर्ट करने के लिए या आपने 71 इंपोर्ट किया, 72 इंपोर्ट किया और 73 एक्सपोर्ट किया। तो 72 टू 73 करने के लिए आपने कुछ तो किया होगा ना, आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील को आयरन एंड स्टील कन्वर्ट करने के लिए। तो मेनी FTAs आर नॉट बॉदर्ड कि आपने 10% किया, 20% किया, 40% किया। एज फार एज यू नो what we have imported is different than what you have exported. Importing country realizes that yes, बंदे ने अपनी फैक्ट्री में ट्रांसफॉर्मेशन कुछ तो किया है, वैलिडेशन किया है, वो कॉन्सेप्ट होता है। मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको सर तुम्हें। हाँ। आप कहीं से आटा इंपोर्ट कर रहे हैं, आटा इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका HS कोड डिफरेंट है, उसका जब ब्रेड बना रहे हैं तो जो समन्ना जी बता रही है कि जब टैरिफ हेडिंग भी हो गया, वैल्यू एडिशन भी हो गया, इसको इस तरह समझिए। आटा आपने लिया, उसका ब्रेड बनाया और ब्रेड बना के आपने एक्सपोर्ट किया। सर आपके हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में फॉरवर्ड रूल्स कुछ है, जैसे हमारे yarn फॉरवर्ड, फाइबर फॉरवर्ड, somebody in garments, handicraft but still garment recycled, anyone? Okay. कई बार क्या होता है अगर गारमेंट जैसे आप लोग साड़ी के कुछ काफ्तान बना दे, भी बहुत अच्छा एक बिजनेस है UK में, रिसाइकल्ड कपड़ों का प्रोडक्ट CBAM के बाद। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया इन UK। सो उसके लिए
they are also trying to understand that when you're making all these announcements, we'll talk that we will match it with the yarn forward and fiber forward. कि कई बार CTC तो है, चेंज इन टैरिफ तो करना है, उसमें भी वो क्लॉज लगा देते हैं कि ये यार्न फॉरवर्ड है, कि फाइबर फॉरवर्ड है, कि फैब्रिक फॉरवर्ड है. ये भी एक रूल होता है कि आप कपड़े को इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप फाइबर ला सकते हो, या फैब्रिक ला सकते हो. ये भी एक रूल होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, राइट. सो बेसिकली आपके क्या क्या हो गए पैरामीटर्स. सबसे पहले आप चेक करेंगे FTA में ओपन नेगेटिव लिस्ट. टाइम पीरियड देखेंगे, ओपन तो है लेकिन अभी खुल रहा है, E0 है कि E5 है, कि 2010 में एग्रीमेंट साइन हुआ तो 2000 जो प्रोडक्ट E0 में है, सपोज सर का प्रोडक्ट E0 में है, तो इनके लिए तो अभी 2010 में अगले दिन एक्सपोर्ट कर दो, नो क्वेश्चन आस्क्ड. बट आपका प्रोडक्ट क्या था आपका, सॉरी, हाँ, फैशन ज्वेलरी अगर E5 में है तो 2010 में अगर एग्रीमेंट साइन हुआ है तो E5 का मतलब है 5 साल के बाद आपको जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा. अगर आपका प्रोडक्ट E8 में है तो मतलब 2018 तक आपको वेट करना पड़ेगा टू गेट एंट्री इनटू दैट मार्केट. दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ कंसेशन, टाइप ऑफ RTA एंड लेवल. आई एम क्विकली गिविंग यू एन एग्जांपल. अजय सर विल टॉक अबाउट US BTA, बट सर ये इसका फोकस ठीक नहीं है. इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, एक लेमैन क्या समझता है. बड़ा इंटरेस्टिंग था सर, बांग्लादेश में क्राइसिस नहीं हुई थी, लड़ाई और मारा बहुत लोगों को, काट मार दिया, तो ये लोग बड़े खुश हो गए कि अब तो सारा बांग्लादेश से माल अब इंडिया से खरीदेगा, बांग्लादेश में जो भी बन रहा है वो सब अब इंडिया आ जाएगा, है ना. ये बड़ा हल्ला हुआ था उन दिनों. तो आपके कॉम्पिटिंग प्लेयर में कभी कुछ केओस होता है या FTA साइन हो जाता है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये आप डोंट गो बाय टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज, प्लीज, राइट. तो दिस इज द एनालिसिस. फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन दिख रहा है जिसमें इंडिया को फायदा है, रेड मतलब इंडिया को फायदा नहीं है. इन द सेंस आपके अगर जेम्स एंड ज्वेलरी है, फॉर एग्जांपल 71 चैप्टर में इंडिया को रीड इट आउट. इंडिया को अगर 90 दिन के पॉज के बाद US में 26% ड्यूटी पे जा रही है तो कनाडा 0 पे जा रहा है, उनके यहाँ 0 है, और स्विट्जरलैंड 32%. तो यू आर बेटर ऑफ देन स्विट्जरलैंड. Don't go by this analysis, okay? Because this analysis is at a chapter level, and free trade agreements are signed at exact HSN code level. Please don't go by sector analysis, which is generally लोग कहते हैं ना टर्की को मुझसे फायदा हो गया. We did exactly the HS code wise analysis कि भदोही से जो कारपेट जाता है और टर्की से जो कारपेट आता है, जनरल एक जो प्रेजेंटेशन मंत्री जी को जा रहा था, कार्पेट इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, कार्पेट इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी क्योंकि भदोही से इतना कार्पेट जा रहा है, हमारा सारा रुक जाएगा क्योंकि टर्की. When we actually analyze, we figured out कि जो भदोही से कार्पेट जा रहा है उसका तो टर्की को लेना देना ही नहीं है. तो why so much of hue and cry? So please go HS code by HS code, not at a sectoral level. Oh God. Anyway, so basically now one of the very big reason that I am telling you that FTA तो sign हो जाता है, but Indian companies do not keep a track of कि उस कंट्री में आप बिजनेस करना कैसे है. कि अगर सिर्फ इम्पोर्ट ड्यूटी 0 होने से धंधा मिलने लगता तो जापान, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया 2022 2 साल हो गया, एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि हमने अपनी फैक्ट्री में क्या चेंज किया वो नहीं देखते हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ये तो दिख नहीं रहा डेटा तो छोड़ देते हैं. I am giving you an example from few emerging destinations in 4 categories: fashion, lifestyle, home textile, home accessories and furniture. In both traditional and emerging, ये स्लाइड आपके पास होगी. एक HS कोड को एनालाइज किया है एक FTA में. For God's sake आप लोग प्लीज इसको फॉलो करिएगा and prioritize your product selection. 2030 में हर कंट्री में किसकी डिमांड बढ़ने वाली है उसकी एनालिसिस हम आपको रेडीमेड दे रहे हैं. राजेश सर, ये आप प्लीज इनको सर्कुलेट कर दीजिएगा. वी डोंट हैव सो मच टाइम. दिस इज एवरी हेल्थ मार्केट में 2030 के फोरकास्टिंग ट्रेंड्स हैं. HS कोड 119 HS कोड्स को एनालाइज किया है और किस मार्केट में क्या बिकने वाला है 2030 में वो आपको अपने रेडीमेड एक्सरसाइज करके दे दिए. ठीक है.
तो ये आपके एचएस कोड वाइज हैं। What you've done is not you have placed 6 digit there and the 6 digit and the product. corresponding 8 digit is also there. Corresponding 8 digit is also there, ठीक है सर। तो ये आपकी होम में हो गया, टेक्सटाइल हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, और ये कंट्री वाइज है। जापान में 4 कैटेगरी में क्या बिकेगा, ऑस्ट्रेलिया में क्या बिकेगा, आसियान में क्या बिकेगा, यूरोप में क्या बिकेगा, और ये तो हो गया एचएस कोड। अब सपोज आप भी वही एचएस कोड बाय, मैं भी वही एचएस कोड, तो बायर आपको क्यों पूछ रहा है, मुझे क्यों नहीं पूछ रहा? भाई ईपीसीएच के फेयर में जाते हो तो भैया 100 लोग इंडिया के बैठे हुए हैं, उसमें भी तो डिफरेंशिएशन होता है कि एक स्टॉल पे भीड़ लगी, दूसरे स्टॉल पे भीड़ नहीं लगी। प्लीज अंडरस्टैंड दीज आर द 5 वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट आई एम गिविंग यू। डिजाइन, कलर, लोकल कस्टम, कंप्लायंसेस, गिफ्टिंग बिहेवियर, ये भी एक्सरसाइज ईपीसीएच के लिए हम लोग करके दे चुके हैं। दिस इज टैप द यूनिक कंज्यूमर बिहेवियर इन द एफटीए मार्केट। कोरिया में डू यू हैव एन आइडिया दैट they always wear exactly same for men and women? यूनिक ट्रेंड्स बता रही है, बहुत स्टार्टलिंग है। एफटीए का फायदा तो है, लेकिन आप इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन का फायदा उठाओगे कैसे when you're not analyzing every consumer behavior in that market? Couples like wearing matching clothes here. साउथ कोरियंस आर द कंट्री जो सबसे ज्यादा अल्कोहल पीता है। अब अल्कोहल इंडस्ट्री का हैंडीक्राफ्ट वालों को क्या फायदा होगा सर? ये सारे केसेस हैं, ये सारा चाइना भरा पड़ा हुआ है कि जो अल्कोहल पिएगा वो अल्कोहल की बोतल रखने का केस भी ढूंढेगा। तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग एनीथिंग फ्रॉम सारनपुर, व्हाई डोंट यू मेक समथिंग दैट इज जेलिंग विद द कंज्यूमर बिहेवियर? सर ये देखो, ये सारा चाइना का माल है। व्हेन आई वेंट टू कोरिया, चाइना का बॉटल स्टैंड्स भरे पड़े हुए थे। हमारे पास आर्ट एंड क्राफ्ट की कमी है क्या? हम क्यों नहीं कर सकते? हम कभी सोचते नहीं हैं। तो आप देखो, साउथ कोरिया इज अ कंट्री जहाँ पे इतने माउंटेन्स हैं, आपके बैकपैक्स, आपके हर चीज की इतनी ज्यादा डिमांड है। सेकेंडली, जापान दे आर क्रेजी फॉर स्टेशनरी। वी हैव एनालाइज्ड, हमने जयपुर का जो ब्लू पॉटरी क्लस्टर है उसको हमने अडॉप्ट किया था। सर आप देख रहे हो, आपके पास जयपुर में एक ब्लू पॉटरी है, सांचा ही तो है। हर कंट्री का चाय पीने का तरीका अलग है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। रशिया में -55 है, आप वहाँ पे चाय अगर बड़े कप में दोगे ठंडी हो जाएगी, उनके कप का डिजाइन अलग है। हर कंट्री के कप की डिजाइन अलग है और ब्लू पॉटरी क्लस्टर की बहुत डिमांड है। लेकिन आप वही क्लस्टर, वही माल कोरिया में जाके ट्रेड फेयर में बैठ जाते हो, वही जापान के फेयर में बैठ जाते हो, कहते हैं एफटीए का फायदा नहीं हो रहा। आपने फैक्ट्री लेवल पे क्या काम किया? हैव यू एनालाइज्ड योर कस्टमर? नोबडी डज इट। सो दिस इज 25 कंट्री ड्रिंकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी। उनके कप की डिजाइन उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो जाती है। ये देखो सर, वाइल्ड अफ्रीका है, ये सारा हम लोगों ने बैठ के डिजाइन कराया है। दे आर फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो उनकी सारी, सर आपका रॉट आइलैंड हो गया ना, आपकी कितनी डिमांड है सर, बट उसकी डिजाइनिंग आपको सिर्फ उनकी जो पूरी सेरेनिटी नेशनल पार्क है उसके रिवॉल्व में वाइल्ड एनिमल्स करिए। कटलरी का इतना बड़ा मार्केट है। ये हो गया सर चिलियन, ये आपका चिली एफटीए साइन होने वाला है सर। चिली में कॉपर के टिफिन बॉक्सेस आर सो मच इन डिमांड क्योंकि दे हैव कॉपर डेफिशिएंसी, दे वांट कॉपर, काफी का प्रोडक्ट है, दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। ये देखिए, सीआईएस कंट्रीज, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद पूरे यूरोप से माल लेना बंद हो गया। अब वो तो इंडिया के पास है, हमें कोई डायरेक्ट माल दे दो। अब जब आप देखोगे सर, देयर इज अ स्टैंड, ये अजरबैजान है, ये आपका सीआईएस कंट्री, ये आपका कजाकिस्तान का पोस्टल स्टैंड है, ये अजरबैजान का है, तुर्कमेनिस्तान का है। इन सब में आपको एक कॉमन चीज दिखाई देगी, व्हिच इज अ हॉर्स। They are so crazy for horses. So we created the entire cutlery rod iron set of only horse design and everything got sold. So every customer get connected. So it is not only about import duty, sir. There is a lot that goes in mind of a buyer to understand that market. ये मलेशिया है, अब देखो सर, पूरा इंडोनेशिया में पूरा, and this is very famous there, cock fighting, पूरा cock की डिजाइन बना के हर चीज में बेची है। This is Middle East, यूएई में माल नहीं बिक रहा, यूएई में माल नहीं बिक रहा। Did you even realize कि मैं सहारनपुर में लकड़ी का काम करता हूँ, मैंने कभी अपने टेबल की डिजाइन चेंज करने की कोशिश करी? क्योंकि बाज को वो लेके ऐसे जाता है अपनी फ्लाइट में। पूरे इंडोनेशिया की वुड आपका कॉम्पिटिंग पेयर है, पूरी फैक्ट्री में कुछ नहीं बनता, सिर्फ बाज बनता है यूरोप के यूएई के ट्रेड फेयर के लिए। ये पूरा आपका बाज, ये लॉन्च किया है लोगों ने, बहुत बड़ा ब्रांड है, पूरी
पूरी ईगल की सीरीज इन्होंने बाज की सीरीज यूएई में लॉन्च करी है. दिस इज वॉकिंग स्टिक्स, राइट. और इसके साथ इन्होंने टेक्नोलॉजी लगा दी कि वॉकिंग स्टिक के साथ इन्होंने सेल्फी स्टिक भी बना दी है विद ईगल. क्यों नहीं एफटीए में माल बिकेगा? तो बाहर तो कुछ डिफरेंट दे रहे हो, एफटीए का फायदा भी उठ रहा है. दैट इज हाउ यू डिफरेंशिएट, राइट. अंडरस्टैंड पूरा टेबल डिजाइन में पूरा एनालाइज इंडोनेशिया का माल क्यों बिक रहा है, मेरा एफटीए के बाद भी माल नहीं बिक रहा है, बिकॉज यू नॉट अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर्स, राइट. दिस इज इट. थाईलैंड, ये पूरा एलिफेंट. दिस इज अब अगेन जापान. हर बंदा अपने पर्स में एक छोटा सा स्टूल लेके चलता है. वो जहाँ भी बैठेगा स्टूल करके ऐसे वज्रासन में बैठता है. हमारे बाबा रामदेव बोल बोल के थके, हम वज्रासन में नहीं बैठते, राइट. वो ऐसे ही स्टूल लेके जाता है और सीधा स्टूल बोलते हैं. तो व्हाई कांट यू मैन्युफैक्चर इन सहारनपुर दीस सीधा स्टूल्स? दे आर फ्लडेड इन जापान एफटीए, राइट. अब आता है आज योगा डे था सर. एनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमने किया था एफटी में, योग से उद्योग, राइट. ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, योग से उद्योग. इंटरनेशनल योगा डे से आपने देखा चाइना ने पहले अलीबाबा पे बेचा एरोबिक मैट. जैसे ही मोदी जी ने इंटरनेशनल योगा डे किया, उस एरोबिक मैट का नाम चेंज हो गया, योगा मैट प्रोडक्ट हो गया. दिस इज इट इज अबाउट प्लेइंग विद एंड इंडिया में इंडियन कस्टमर ने, इंडियन लोगों ने इंटरनेशनल योगा डे का कोई बिजनेस पे फायदा नहीं उठाया, जो कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को इतना बड़ा हम योग करके घर आके सेशन में आ गए. किसी ने धंधे में दिमाग नहीं लगाया. इंटरनेशनल योगा डे सर आपका सबसे बड़ा मार्केट योगा का है यूके. अभी एफटीए साइन हुआ है. क्या माल बेच सकते हो? आइकिया. आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात है सर, कोविड के टाइम पे रामायण महाभारत आया था, उसमें आपके जो ऋषि मुनि है वो किसके ऊपर बैठ के तपस्या करते हैं? घास के ऊपर, बिकॉज इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो जब आप प्राणायाम करते हो और आपने अगर योगा मैट के ऊपर बैठ के किया, इट इज अ बैड कंडक्टर, वो पूरा अर्थ हो जाएगी एनर्जी. तो आइकिया क्या कर रहा है? बड़ी कंपनी नॉर्थ ईस्ट में सफाई की घास है, उसको यूज करके योगा मैट बना रहा है. इंडियन प्रोडक्ट है, कहाँ बेचेगा? यूके में बेचेगा. हमारा दिमाग क्यों नहीं चल रहा है? तो you have to understand the science behind selling a product. तो एफटीए का फायदा ऐसे हवा में नहीं होता है. ठीक है, ओपन लिस्ट है, नेगेटिव लिस्ट है, वो सब वो एक पार्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस हो गया. बट हाउ टू सेल इज, दीज आर ऑल मेडिटेशन एप्स हैं. आप देखिए कितने मेडिटेशन एप्स हैं. आप क्यों लॉर्ड बुद्धा बेचेंगे? गॉन्ग्स बेचिए. मुरादाबाद से भरा पड़ा है सर पूरा मेडिटेशन में. बेल्स एंड गॉन्ग्स का मार्केट इतना इम्प्रूव हो गया है. ये आपका योगा एंड मेडिटेशन का कल्चर इन एक सिटी इन पेरू. अब इंडिया पेरू एफटीए साइन होने वाला है सर. एक सिटी में 380 योगा स्टूडियो हैं पेरू में. कितना बड़ा योगा मार्केट है. उसके प्रोडक्ट्स आप लोग क्यूरेट क्यों नहीं कर सकते, राइट. तो दीज आर, बनारस से हम लोगों ने सिल्क के योगा मैट बनाने शुरू करे हैं, राइट. सो दीज आर ऑल न्यू अपॉर्चुनिटीज. कोरिया, एवरी 4th person is committing suicide in Korea only out of stress. We have an FTA with Korea. और उनकी सरकार ने इंग्लिश स्पीकिंग योगा क्लासेस शुरू करी है. भारत से योगा टीचर जा रहे हैं. तो योगा टीचर जा सकता है, तो योगा प्रोडक्ट क्यों नहीं जा सकता? इम्पोर्ट ड्यूटी जीरो. प्लीज अंडरस्टैंड योर मार्केट, राइट. उसके बाद इवेंट का फायदा उठाइए. जैसे ये कोरिया है सर, हर वैलेंटाइन डे इज डिफरेंट. वैलेंटाइन डे में क्या होता है? पूरा गिफ्ट मार्केट आप देखेंगे तो बॉय इज गिफ्टिंग टू अ गर्ल. कोरिया में उल्टा होता है, गर्ल गिफ्ट टू दी बॉय. बिल्कुल ऑपोजिट सीन है, राइट. और उसके 3 महीने बाद एक और आता है जिसमें अगर आपने 100 रुपए का लड़की ने दिया तो लड़के को 300 रुपए वापस करने पड़ते हैं, राइट. बड़े खुश हो गए, कोरिया जाएगा. So basically, and these are this is a science in itself, this is a research in itself. कि एफटीए मार्केट में क्या क्या इवेंट्स को आप कैश करके प्रोडक्ट्स ओरिएंट कर सकते हो. So everybody knows Valentine's. You did not know there is a black day, there is a hug day, there is a white day, there is a kiss day. There is so many days जिसके अगेंस्ट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स क्यूरेट हो सकते हैं. It's a huge thing. क्रिसमस फेस्ट, आप यूरोप के पीछे भागते हो क्रिसमस के लिए. कभी फिलीपींस सोचा है क्रिसमस के लिए? 6 महीने क्रिसमस चलता है.
6 महीने का बिजनेस है फिलीपींस में क्रिसमस का, और किसी को आज तक पता नहीं है ये क्रिसमस शुरू होता है आपका ये बैम्बू एंड पेपर ये खरीदते हैं पूरा नॉर्थ ईस्ट से। 6 महीने तक, जनवरी तक, मार्च तक इनका क्रिसमस खिंचता है। हम यूरोप में क्रिसमस देखते हैं, उसके प्योर देखते ही नहीं। ये इंडो एशियन एफटीए यूरोप के पीछे भागते हैं जिसमें हमारी इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत हाई लगती है। तो दीज आर ऑल, डिड यू नो दैट वी हैड अ ट्रेन इन जापान जो कि पूरी मधुबनी से पेंटेड है इन जापान? There is a Mithila museum in Japan. So we have not exploited these handicrafts in the FTA countries, right? इसको climate, religion और belief के साथ handicraft को आप मैप करिए। जैसे जापान for that matter, इतना earthquake आता है सर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा business curtains का है। 63% market of curtain in Japan is only India. इतना बड़ा market है सर जापान। Breakable gates, HS code 70 जापान में चले गए हैं क्योंकि अर्थक्वेक आता है, शैंडलियर टूट जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग अपना स्लाइड दिखाते हैं, डिड यू नो दिस सनग्लासेस मार्केट फॉर डॉग्स? अच्छा यूनिक मार्केट, ये आईकिया बैम्बू के प्रोडक्ट्स बना रहा है नॉर्थ ईस्ट से, क्योंकि हर घर में कुत्ता रखना जरूरी है क्योंकि वो अर्थक्वेक को समझ देता है। हर घर में कुत्ता है। हैंडीक्राफ्ट आइटम फॉर पेट्स इन जापान एफटीए, सच अ ब्यूटीफुल बिजनेस बिकॉज देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। Okay, so to sense the earthquake, every house in Japan has a dog, and dog accessories out of handicrafts is an eco-friendly concept. Bamboo sunglasses for dog is a multi-millionaire market. So religion के साथ connect करिए. Silk will never be sold in Indonesia because Quran does not allow you to wear silk. Never try silk in Muslim countries, right? Again, diseases. पूरे CIS कंट्री में लोग तांबे का ये बर्तन चाहते हैं क्योंकि they have coronary heart diseases coming up, जो कि तांबे के you can beautify, इसको एनग्रेव करिए, इसको हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बना दीजिए, इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। तो आप लोग कभी मेडिकेटेड मेडिसिन एनालिसिस या हेल्थ एनालिसिस नहीं करते हो, एंड कनेक्ट दैट विद योर हैंडीक्राफ्ट्स। सी दिस इज द साइकोलॉजी। नंबर 4 इज अ टेरर इन जापान एंड कोरिया। तो नंबर 4 हैंडीक्राफ्ट्स कभी ना 4 क्वेश्चन कवर मत निकालिए, 4 टी क्वेश्चंस मत निकालिए, इट प्लेज ऑन देयर माइंड, राइट? नेवर डू दैट। हाई कलर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाईलाइट येलो कलर, किंग 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 किंग, पूरा येलो, कुछ भी ले जाइए निकल जाएगा। ब्राजील, Amazon forest से they connect with the diseases of Amazon forest. Green color कभी लैटिन अमेरिकन FTA में हैंडीक्राफ्ट के लिए चलेगा ही नहीं। There is a science of color. पूरा IIT Delhi is working on science of color and marketing. So these are a lot of, and this is final online, not very clear, but all said and done, I am trying to help you. The government is trying to do a lot for you, but what have you done for yourself to leverage the FTA? Is absolutely your effort. Thank you. Thank you, Annabelle. Thank you very much for that. As always, very very insightful presentation. जैसे तमन्ना जी ने सवाई मिरास की बात करी, मैं आपको एक छोटा सा इंटरवेंशन अपना बता दूँ इस चीज़ का। अभी हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं बिहार में, अगर आपको बिहार की ज्योग्राफी और बिहार के बारे में जानकारी होगी तो देयर इज अ वीट कॉल्ड वाटर हायसिंथ, जलकुंभी कहते हैं उसको, और वो प्रॉब्लम है। वो क्या हुआ, किसी ज़माने में ब्रिटिशर्स के समय इट वाज ब्रॉट फ्रॉम लैटिन अमेरिका समवेयर एंड वाज प्लेस्ड देयर, और वो आज मुसीबत बन गई है जलकुंभियों पर। तो अभी प्रयास ये हो रहा है कि उस जलकुंभी से हम लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, उस सब की बात हो रही है। तो दैट इज हैपनिंग। जलकुंभी को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको सुखा रहे हैं, उसका रेशा बना रहे हैं, एंड देन बास्केट वर्क एंड ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स आर बीइंग मेड। आप फेयर में, आने वाले फेयर में आप देखेंगे भी, विल डिस्प्ले दोस प्रोडक्ट, आर्टिजन्स आर वर्किंग ऑन इट। सो दिस इज वन इनिशिएटिव वी टेक। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर श्रीवास्तव टू, सर यू हैव अ प्रेजेंटेशन? So good afternoon. I don't have much to say. So I say, handicraft exports from India is about $4 billion, and 70% of this goes to US, European Union, and UK, and we are on the verge of completing FTA with these three nations. So
So these three FTAs will have important bearing on your exports. And so you expect that for European Union and for UK already announced that on 99% of Indian exports, they agreed to eliminate the tariffs. So you expect all your exports to be covered. So your exports will be entering UK at 0 tariffs. Europe, we are in between, but we are understanding that both the sides, they agreed to cut tariffs on 90% plus, which means almost all of your products will be covered in European Union FTA also. That's a good news. Now coming to US. US, nobody knows in fact. Nobody knows, but I'll tell you what we know right now. So you all know that we impose more duties, we call them MFN tariffs. MFN tariffs are those tariffs which we take from imports from all countries except the FTA partner countries on which we can take lower duties. So all the countries, they charge MFN tariffs, and when we do FTAs, like we are doing FTA with the UK or European Union, both the sides, they cut their MFN tariffs. But in the US case, it's very different this time, Trump being in charge. He says, so there is a concept called fast track trade authority. So US Congress, it authorizes US President to do trade deals like FTAs or at the WTO. But this time there is no fast track trade authority, Mr. Trump. So he doesn't have the powers to cut the MFN tariffs in any of the FTAs. So we have all seen that how he has imposed the country-specific tariffs on April 2, and then he postponed it for 3 months. And he feels for India tariff was 26%, and he says that in this 3 months time, countries should approach US, offer sweet deals, which means offer to cut tariffs on US exports to those countries, and of course give a lot of privileges to the US companies working, for example, in India. That's what is there. If you don't do that, I will reimpose the 26% tariffs. Now, we have to understand this 26% country-specific tariff, it exceeds US commitments in the WTO. So it's WTO non-compatible. That means it will go as soon as Trump goes, even before that. And second point is that, so on one hand, this country-specific tariffs or Liberation Day tariffs, they are non-compatible with the WTO. They have been found to be violating US laws also. You will see that how US Court on International Trade, it says that it's illegal to apply national emergency clause to invoke tariffs, and it has been stayed there. But it's possible in 2-3 months' time these country-specific tariffs may be outlawed in US also. But suppose they continue, they are certain to go with Mr. Trump. That is 2-3 years more. So now we are doing an FTA, and we will be cutting our MFN tariffs. US will not be cutting any of their MFN tariffs. They don't have the power. They say that we will not impose the country-specific tariffs partially. Means from 26%, we'll impose only 10% fine on you. So that's where we are right now. So if we have an FTA with the US, Indian side will be making its tariffs on everything, including some of the sensitive items, as we are reading hearing. For example, some of the agriculture items, automobiles, something, and almost all of the industrial goods to 0. And they will not touch their MFN tariffs. And so your handicrafts going to the US will be paying the current rate of the MFN tariff plus 10%. That's what is proposal. So Indian side is asking them, at least you make it 0 country-specific tariffs. So best case scenario is that you cut all your MFN tariffs, they will not cut anything. That's the best case. But Trump is not agreeing to that, and I think we have to settle for 10% in most cases, because that's what he has done with UK. So US-UK agreement can be a template for US-India agreement also. So in US-UK agreement, it was announced on May 6th, and so UK
agreed to eliminate tariffs, MFN tariffs on 2500 products. US agreed to cut country-specific tariff to 10% plus MFN on only 100 products. So it's totally one-sided deal. UK was totally bullied, and I hope India should not fall into that trap. But I don't know. So that's the current development about US-India BTA. And we should. It is an FTA. So we know we have CIPA, similarly BTA. So it's FTA. So it's an FTA. We should have no doubts about those things. So this is about US-India FTA. So I say. So since your 70% of the products they go to 40% go to US, and then next 25% go to European Union, and then 7-8% to UK. So these FTAs will be helping you in those things, but we cannot be very certain that this will lead to increase in exports in a big way. Why? Because tariffs are already low in these countries, they are developed countries. And average tariffs are on, say, handicraft product, there is a range of course, but average tariffs are 4.5 to 5%, that's it. So this much will not give you a big edge. So you have to search for, as Rajesh said, for diversification of the markets. But I was thinking that why 70% of our exports go to developed country? Does it have to do? So I don't have the answers. I'm just posing a question to myself and to everyone. Is it because we export traditional products, heritage products, high artisanal value products, which are liked by, say, slightly older generation, and our products they don't feel, most of our export don't find fit with the younger generation. They are the impulse buyers. For example, the products like now they want contemporary designs, home utility items, and many such things they want. Some of our exporters they are doing those things, but most are not. Most are into traditional products. And you see, when I was traveling to Southeast Asia for my official duties, we used to make it a point to visit their handicraft markets. All those things. You must have all seen. They have improved a lot in the past 20 years. So unless we go their way, you see Chinese products, how different they are. So we need to do an introspection. So if we see it's $800 billion market, and we are 4 billion, we are a big nation. And so unless we make, say, utility item, home utility item, contemporary design items, cheaper items, fitted with electronics somewhere, we will be stuck with these high-end markets where older generation people are maybe buying these things. So we have to focus a lot on design and all those things. All countries have changed. Vietnam has changed, Thailand has changed, Indonesia has changed, China, of course, in a big way has changed. We need to do that. So how far I am right or wrong, I want to hear from the experts. Thank you. Sir, you are very right that we have been making inroads into several European markets of Latin America. Middle East has done very well. UAE has emerged as one of the largest trading partners as far as handicraft is concerned. Then again, we have some markets. I mean, Nigeria, you won't believe, but Nigeria is again a very big market. The problem with Nigeria is I've been to Nigeria myself, and what I've found there is I've been to various department stores and I've seen products there, and what I found there is there are a lot of Indian community there, and they are importing products from India and supplying it to various retail and wholesale houses. So that is again a good market. But most of our exporters fail to identify that as a big market. In the sense, there is negative impression of Nigeria. There are instances, but still Nigeria is a big market. Tamani spoke about Ghana. I also went to Ghana. It was an exploratory visit. Ghana is again a good market. South Africa is a good market. Then
if you look to North Africa, there's a country called Algeria, Morocco, Libya, Egypt. These are really good markets. Because if you see Algiers is called the Paris of North Africa. So these are good markets. So it is time that our exporters venture into these markets and export these markets. I just compliment for Algeria. We were working with Council for Leather Exports and they said, मैम अल्जीरिया में एक फेयर जा रहा है, तो ऐसे बताओ एक्सपोर्ट क्या लेके जा रहा है? तो मैम ये आपका से जूता जा रहा है, बैग जा रहा है, ये जा रहा है। मैंने कहा भाई तो क्या ताइवान ये लेकर नहीं आएगा? चाइना तुमसे बेटर लेकर आएगा, वियतनाम भी सस्ता माल लेकर आएगा। So the idea is we started analyzing कि अल्जीरिया में ऐसा क्या खास है? We realized 99% people were chain smokers. So what we said कि आप जूता मत ले जाओ, आप बैग बेल्ट मत ले जाओ। We actually called NID के बच्चों को पकड़ के we designed leather case cigarette cases और इतना बड़ा ऑर्डर हम लोग लेकर आए because कोई और ये सोच कर ही नहीं आया कि इस कंट्री में हर आदमी को एक लेदर सिगरेट केस चाहिए होगा and it was such a sophisticated market. So it is hookah बहुत पीते हैं, they are पागल for cigarette and hookah. So we have to understand the market and see कि run of the mill product नहीं लेके जाना है, वो बंदा क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, कब सोता है, कब उठता है. If I were to analyze that market, मैं अपने handicraft को इतना सुंदर curate कर सकता हूँ and that is how we are leveraging FTA, right? Say about the markets in North Africa and West Africa. I mean, they have this liking for India. अगर आप मिले उनसे कभी जाके तो वो लोग मतलब उनको हिंदुस्तान से प्यार है, हिंदुस्तान के प्रोडक्ट से प्यार है, हिंदुस्तानी से प्यार है. That I felt myself. मैं नाइजीरिया में था, I was in Nigeria and the place, I forgot the name of the place. तो वहाँ मेरे साथ एक ड्राइवर था. वो ड्राइवर मुझे पूरे घुमा रहा था और उसका एस्पिरेशन क्या था? वो उसकी बिटिया पैदा हुई थी, वो कह रहा था कि मेरी बिटिया जब बड़ी होगी ना, मैं इसको हिंदुस्तान पढ़ने के लिए भेजूंगा. सी इसका एस्पिरेशन देखो, आप यहाँ से अमेरिका वो करते हैं कि वो इंडिया को इतने पॉजिटिवली देख रहा था, उससे बोल रहा था कि वो बड़ी होगी, आई सेंड इट टू इंडिया फॉर स्टडी. आपने देखा होगा हमारे ब्रिटेन मॉडर्न और देयर आर लॉट ऑफ अफ्रीकन स्टूडेंट्स स्टडी. तो वो लोग दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडिया. बट एंड अगेन नाइजीरिया से आप हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं. सी नाइजीरिया इज द कंट्री where we import oil to the maximum. I mean, apart from the Gulf countries, Nigeria is one country where we are importing oil in a very huge amount. लेकिन वो एक दिमाग में वो है कि we don't have to do business with them and so on and so forth. तो वो पॉइंट से दिखाना. We need to explore some new markets. Once we do that, I mean, there will be more cost. Good afternoon. आप थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है कि you have to listen something else from me, नहीं? आज मैं एक्सपीरियंस की बात नहीं करूँगा कि क्या एक्सपीरियंस लाइफ के अंदर देखा मैंने, ठीक है ना? थैंक यू सो मच कि सुमना जी ने काफ़ी कुछ आपको FTA और बिजनेस के बारे में जो भी कभी थोड़ी देर के अंदर चेंजेस आएंगे, मे बी आफ्टर आई थिंक 9th of July, और अजय जी ने भी आपको कई चीज़ें थी जो समझा दी. मगर मैं भी ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें भी चलती रहेंगी, मगर आप अपने प्रोडक्ट्स डिज़ाइनिंग एंड कलर स्कीम्स उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि वक्त का कोई पता नहीं है. 1 महीने की बात है, उसके बाद आपने थोड़ा बिजी हो जाना है. एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी बिजी आवर हैंडीक्राफ्ट शो एंड फैशन ज्वेलरी शो दैट इज कमिंग नेक्स्ट मंथ 4 to 6 July. So do everything. ये चलता रहेगा, वर्कशॉप भी चलेंगी, आपके बिजनेस भी चलेंगे, सारा कुछ होगा. So all the best. Thank you. Yeah, good evening everyone. I'm Chris Malik. I'm listening to all this session. अभी क्वेश्चन सर ने किया था, सर ने कि why 90% market is in US and Europe. So there is a very clear answer to this. कि यूरोप और US ऐसी चीजें लेते हैं जिसके बिना जिंदगी आराम से कट सकती है. आप अगर एक पोस्टर बना रहे हैं तो ग्लास में पानी का टेस्ट वही रहेगा, अगर आप नीचे नहीं भी रखेंगे तब भी जिंदगी आपकी चल जाएगी. आप टेबल डेकोर कर रहे हैं, कुर्सी की ऊपर कवर बना रहे हैं, जो भी डेकोर आप कर रहे हैं, जैसे एक साड़ी लेते हैं आप बाजार जाके, उसके ऊपर 1 लाख रुपए का काम करवा रहे हैं, तो
तो बाद में आई मीन वो बैठ के वहाँ पे ही रहती है और या कभी उसके पुराने बर्तन मिल जाते हैं आपको सिल्वर वाली वैल्यू के। तो आई थिंक हमारे जितने भी वर्ल्ड फेमस जो फेयर्स हैं जैसे मैसेज फ्रैंकफर्ट है या वेगास में या अटलांटा में, तो सारे मेन स्टेशन हैं। और शुरू से हमारा जब से 70s से एक्सपोर्ट चालू हुआ है तो यही वाली मार्केट से ही लोगों को राइज करते देखा और उनकी वॉल्यूम भी बड़ी हाई होती हैं। हमारे इंग्लिश देश ने काफ़ी कोशिश की है कि अदर देन यूएस एंड यूरोपियन मार्केट से हम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इवन मिडिल ईस्ट या ऑस्ट्रेलिया भी देख लें। अब ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कितनी कम है, अगर कोई बड़ी कंपनी भी आती है तो वो 200-400 पीस से ज़्यादा ऑर्डर दे नहीं पाती है, कहते हैं हमारे यहाँ पे कंजम्पशन ही नहीं है। तो अमेरिका में लहर आती है तो पूरे वर्ल्ड को हवा देती है। जैसे इंडिया में शेयर मार्केट में टाटा और रिलायंस के शेयर बढ़ते हैं तो सारे ही बढ़ते हैं। तो वी शुड ऑलवेज प्रे कि अमेरिका ठीक चलता रहे तो हम सारे खुश रहेंगे एनकराफ्ट वाले। अगर उस कंट्री में दिक्कत है, वहाँ स्लो डाउन आता है तो सारी जगह रिपल इफेक्ट आता है। ठीक है मुझे तो ये मार्केट वैसे ही हमारी ट्रेडिशनल मार्केट रहेगी जहाँ पे हमें ग्रोथ का, अगर कोई अमेरिकन बायर, टारगेट का या वॉलमार्ट या कोई भी अच्छा ग्रुप आता है जिसके स्टोर्स हैं, तो आपको शायद आप उसकी क्वांटिटी को प्रोड्यूस भी नहीं कर पाओगे इंडिया में। अभी तो ये आ गया कि लेबर के कितने इश्यूज हो रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई ऑर्डर भी आता तो हम इतने खुश नहीं होते कि बनेगा कैसे, 60 दिन में कैसे बनेगा। और हमें पता हमारे इंडिया में सारी शिपमेंट लेट जाती हैं क्योंकि यहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशंस भी हैं जो कि दिल्ली से बॉम्बे भी भेजना हो तो हमारे को पता है कम से कम 15 दिन लग जाएंगे ऑन बोर्ड होने में। तो जो जैसे आप सर बता रहे थे ये साउथ ईस्ट एशिया में गए हैं तो वियतनाम और चाइना में आप देख लें सारी फैक्ट्री पोर्ट्स पे हैं, 3 दिन में BL मिल जाता है आपको। तो ये चीज़ें, बट इंडिया में अपनी वैल्यू है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जिसके पीछे हम सर्वाइव कर रहे हैं। चाहे नॉर्थ ईस्ट चले जाएँ, झारखंड चले जाएँ, कश्मीर चले जाएँ, तो ये है प्रोडक्ट एवरी 100 किलोमीटर। तो उसी का ही फायदा है कि उसी में मेरे हिसाब से बायर आता है वहाँ से, उसको प्रोडक्ट चाहिए। अब मेरी एक बात हो रही थी जब ईयर 1 कंपनी थी तो वो मार्ट में विजिट करते थे तो उनका एक वर्टिकल आ रहा था हार्डवुड्स का। तो उन्होंने जब विजिट किया मार्ट में तो उनको एक लैम्प नजर आया एक मार्ट में। वो कह रहे थे हम, ये स्प्रिंग फेयर था, कह रहे थे हम अक्टूबर में भी आया था और एक लैम्प बड़ा हुआ था, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया और उसके ऊपर मिट्टी लग गई है। आई मीन द शो विंडो इज नॉट चेंज। कह रहे दिस इज व्हाई वी आर कमिंग हियर, स्पेंडिंग सो मच, हमारी पूरी टीम आ रही है स्पेंडिंग लाइक $10,000-20,000 टू लुक फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। सो वी डोंट इनोवेट सर। हमारे को वही आदत पड़ी है कि शायद अपने आप ही आगे में जूते, चप्पल, बैग सब ले जाएगा। अब वो चीजें रही नहीं है। यू हैव टू हैव अ सेपरेट सेक्शन वेयर 12 months you have to do the design। चाहे फेयर है चाहे फेयर नहीं है, आपको कहीं ना कहीं नई मटेरियल, नई चीजें लेके जाएंगे तो कहीं आप सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज मार्केट से आप बिल्कुल बाहर होते जा रहे हैं और हो भी जाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन कि फेयर में बायर आता है बट ही कम्स टू लुक फॉर अ न्यू प्रोडक्ट बट वी डोंट क्रिएट दैट वे। हमारे पास प्रोडक्ट होंगे तो बायर 100% लेगा। आप भी कहीं जाएंगे आप सेम चीजें तो नहीं लेते रहेंगे ना। पहले होता था यार कॉपलर भी सेम होता था, टेलर भी सेम होता था, वही बंदे। अब वो चीजें, नई जनरेशन आ रही है, दे आर नॉट लुकिंग फॉर गिफ्ट प्रोडक्ट। अभी जैसे हमारा एक सर्वे हुआ था जिसमें ये सर्च किया गया था सर्वे में कि गिफ्ट आदमी कब देता है किसी को, किस कैटेगरी में आता है। जो गिफ्टिंग जो सबसे टॉप पे होती थी आज की डेट में लास्ट में कि कोई आदमी दूसरे घर जाकर कोई गिफ्ट आइटम देता है किसी को। ये पूरे यूरोप में यही है। नोबडी नाउ हैव अ टाइम टू गिव गिफ्ट टू एनीवन। तो आई मीन अगर आपने सरवाइव करना, वेरी सिंपल, कंप्लायंस फैक्ट्री रखिए, खर्चे के लिए तैयार रहिए, डिजाइन करिए, रिजल्ट्स आपको आएंगे। आपको सक्सेस अमेरिका और यूरोप से मिलेगा। अफ्रीका जैसी कंट्रीज के नाम ले रहे हैं, हमारे को नाइजीरिया का नाम सुनते हैं दिल्ली में रोज कोई ना कोई इंसिडेंट हुए होते हैं कि नाइजीरिया वाला पकड़ा गया ट्रक में या वो बांग्लादेशी ये ले गया। आई मीन दिस काइंड ऑफ थिंग। उस कंट्री में सबसे नकली कार बनते हैं, नकली ऐसी खुलती हैं जो उनकी रेपुटेशन है, ट्रेडिशनल रेपुटेशन। हम उसको चेंज ही नहीं कर सकते। मे बी इनको वेबसाइट देखो, सारी जगह खराब लोग नहीं होते, अच्छे भी लोग होते हैं, बट वहाँ ज्यादा खराब लोग अच्छे कम है। तो मे बी ऐसा इंप्रेशन है। अगर मेरे को कोई नाइजीरिया में काम करना तो मे बी आई विल थिंक 5 टाइम्स। उसने 1 करोड़ की LCD बोल देगा तो मेरे को डर लगा रहेगा जब तक पेमेंट नहीं आएगी कि भाई ये There is a huge Indian community there, Nigeria में।
No, I am not denying कि there is no सारी fraud है. मैंने पहले ही बोला है कि I mean this is how we look into it क्योंकि हमारी कोई growth story नहीं है अफ्रीका के साथ. अभी हमारे जैसे MBA में भी इन्होंने अफ्रीका से आपने मिस वर्ल्ड की बुलाई थी शायद वहाँ से कहीं से ना तो वो प्रमोट करने के लिए वो सारे आगे घूम के चले जाते ऑर्डर नहीं देते हैं वो. और सबसे ज़्यादा लिस्ट में यहाँ पे हम बायर्स को स्पॉन्सर करते हैं हिंदी कंट्रीज के ही होते हैं. बट उनकी अगर बाइंग पावर देख ले तो मुझे नहीं लगता उनकी कोई बाइंग पावर ऐसी है और वो अपने मतलब 10 इंडिया ताजमहल और फैशन करके अपना चले जाते हैं. तो आई थिंक आई जस्ट टू गिव दिस थिंग कि यही है ना. तो हमें प्रोडक्ट अपने अच्छे बनाने हैं और जैसे अभी हमारा स्प्रिंग ऑटम फेयर आ रहा है तो उसके लिए अभी से ही मेहनत कर रहे हैं. प्रोडक्ट बनाएंगे तो रिजल्ट आएगा. अगर प्रोडक्ट नहीं है आप कहीं पर भी स्टैंड नहीं करेंगे. आप अगर वो लोकेशन में भी प्रोडक्ट अच्छा बाहर आपको ढूंढ लेगा. उनकी नजरें बहुत तेज हैं. Looking for new products, this is my mantra for success in handicraft. Otherwise, I'll power away. Thank you so much. Thank you, Mantra. Thank you very much. Now, if you have any one last question, you can pose, or else we'll continue. Before we take the questions, I will request anybody who is actually utilizing FTA, very candid. यूरोप ये ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक्सपोर्ट बढ़ गया या यूएई में पहले मैं एक्स ड्यूटी पे देता था अब 0 पे दे रहा हूँ. एनीबडी हु इज ट्राइंग टू यूटिलाइज दीज एफटीएस वेरी कैंडिडली? Not yet. Not yet. They are waiting for how many of you are looking up to UK FTA? Everyone. इसमें तो हाथ खड़ा हो सकता है यार. UK FTA right? Okay. What preparations are you doing to get prepared? Making better designs. Better designs, right? Sir, if you're doing business in UK में and opportunities in UK में curate करेंगे session. Only UK. How will you take? Yeah, I think let's do that. Average. Exact HS code by HS code, design by design, color by color. UK के लिए कैसे आप तैयार कर सकते हैं? We are curating that session for all of you. That will help. तब तक स्केड्यूल भी आ जाएगा कि यूके में कौन सा ओपन है कौन सा नेगेटिव है अभी आया नहीं है. E0 कौन सा है तो यू कैन प्लान योर शिपमेंट्स अकॉर्डिंगली. बट सिंस नन ऑफ यू हैव एक्चुअली यूटिलाइज आप लोग यूएई और किसी भी एग्जिस्टिंग एफटी में कोई बिजनेस नहीं है. यूएई हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नोबडी हैज एवर ट्राइड. आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड अ वेरी कैंडिड एक्सपीरियंस. एफटीए होने के बाद कुछ आपका बिजनेस एक्सपीरियंस बढ़ा है. एंड जस्ट बिकॉज वी आर आस्किंग इसलिए मत करिएगा. जेन्युइनली बिजनेस बढ़ा है. बिजनेस बढ़ा है. इंक्रीज आपका बढ़ा है. जी जी बिल्कुल. गवर्नमेंट कीप आस्किंग द काउंसिल ईपीसीएच और एनी काउंसिल की एक्सपोर्टर का पर्सपेक्टिव क्या है. मतलब आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं क्या चैलेंज जा रहा है. We're more interested to hear your part of the story. हेलो जी मैम. पहले जो भी हम बिजनेस कर रहे थे एफटीए से पहले तो ऑलमोस्ट डबल हमारा बिजनेस हुआ है ऑस्ट्रेलिया के लिए. ऑस्ट्रेलिया यस हम लोग मेटल फर्नीचर करते हैं. यस Good market in Japan as well, especially Chennapatna toys, a hot selling item in Japan. But आपको volume of business बढ़ा है, like quantity बढ़ गई कि price कम हो गया, क्या बढ़ गया? प्राइस तो सेम ही है. क्वांटिटी बढ़ गया. क्वांटिटी बढ़ गया और ऑर्डर भी पहले सपोज मंथली 2 कंटेनर के हुआ करते तो 5 कंटेनर्स हो गए. फर्नीचर का क्वांटम वैसे का काफी कम होता है, वैल्यू हाई होती है. फर्नीचर का ही सीन है ना. SKUs भी बहुत बढ़ रहे हैं या फिर हाँ SKU भी इंक्रीज हो गया. SKU भी इंक्रीज. But price remains same. प्राइस में कोई आपका मार्जिन नहीं. जी. So I think एक सवाल है. जितने भी ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन की बात की गई है कुछ मेरी प्रॉब्लम्स आई हैं कि जब हम इंपोर्ट क्लियरेंस कराते हैं तो वो एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन मांगते हैं, तो ना कि वो डीसी हैंडीक्राफ्ट या और किसी या का मांगते हैं. तो एफटीए में क्या वैलिडिटी है, एक्सपोर्ट काउंसिल इंडिया की या ईपीसी की? कौन सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन?
लिस्ट है उसमें सबके नाम लिखे हुए हैं। नहीं लिखे हुए, वो कहते हैं जो एफटीए के अंदर आइटम आएंगे वो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल करेगी। बोलने की बात अलग है, लेकिन भारत सरकार की लिस्ट उसमें सारे नाम लिखे हैं। अब डीसी हैंडीक्राफ्ट का भी नाम है उसमें, कोई जाता नहीं है, बात अलग है, तो इसलिए उनको पता नहीं है। एक केस था ये टाइल्स के ऊपर, तो उसमें एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल के लिए। दूसरा एक इशू है कि जो हम प्रिवेंशन टैरिफ पीडीए करते हैं, बीएटीए करते हैं, एफटीए करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करते हैं इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए? हाँ, ट्रेड नेगोशिएशन, जैसे आपने कहा कि सेंसिटिव लिस्ट है। अरे बिल्कुल सर, इंडस्ट्री कंसल्टेशन के बिना तो ये लिस्ट आउट हो ही नहीं सकती है। तो द काउंसिल एक्चुअली डिस्कसेस विद द इंडस्ट्री। आपको सर्कुलर आता होगा ईपीसीएच से कि अब ये एफटीए साइन होने वाला है, कौन से प्रोडक्ट को आपको रिलैक्सेशन चाहिए, ये पूरा इंडस्ट्री कंसल्टेशन के बाद आई थिंक वी यूज्ड टू डू इट इन एक फीडबैक आपको दे दूं, हम लोग रेगुलर सर्कुलर्स भेजते हैं जिसमें हम लोग आपको भेजते हैं कि दिस एफटीए इज गोइंग टू हैपन एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू से ऑन टैरिफ एज वेल एज नॉट टैरिफ, वो रेगुलर जा रहा है, इट्स अ रेगुलर थिंग दैट वी डू। बट जो मेरा अनुभव रहा है, आप लोग क्या जो मेल होता है, अगर बायर के यहाँ से कोई मेल आता है तो फट है, बायर के मेल से आपको कोई मतलब नहीं मिल रहा है। आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी रिस्पांस इन सो मेनी इयर्स नाउ, तो उसको देखिए अगर आपको कोई भी लगता है, आई मीन वी विल बी हैप्पी टू हैव दिस इशू, क्योंकि मिनिस्ट्री में जैसे इतनी सारी बात हुई, टैरिफ्स तो रह नहीं जाएंगे, ठीक है, यूएसए इज कोलैबोरेशन वेयर दे आर ट्राइंग टू इंपोज हायर टैरिफ्स, बट एक्चुअली टैरिफ्स are very low in all that. अब जो सारा खेल होगा ना, वो नॉट टैरिफ बैरियर्स होगा, नॉट सस्टेनेबिलिटी एंड नॉट कंप्लायंस विल कम। तो हम सरकार भी जानना चाहती है कि अगर आपके पास कोई नॉन टैरिफ बैरियर लगा रहा है तो आप उसे बताएं, क्योंकि जब वो बताएगा तब भी तो सरकार कुछ करेगी ना। तब भाई आप नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठेंगे तो आपके पास इंडस्ट्री होनी चाहिए ना कि भाई तुम ये लगा रहे हो तो 4 रेट लगाता हूँ, बिजनेस हैपेंस इन इक्वल फुटिंग, तो उसका रिस्पांस कभी नहीं आता। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एसपीएस टीपीटी करके एक पोर्टल बनाया है। कभी भी आपके बायर से आपको कोई भी चैलेंज आता है, प्लीज फील फ्री टू रिपोर्ट, लॉग इन, जस्ट पुट, अगर अनोनिमस भी डालना चाहते हैं तो भी डालिए कि मेरा बायर मुझसे ये मांग रहा है, इस कंट्री में ये इशू आ रहा है, एंड दिस एक्चुअली इज अ very close. People like us are taking the responsibility to actually put it just the highest level कि जब आप country to country negotiation में मंत्री जी जाते हैं तो एक्सपोर्टर्स के इशू को उठाया जाता है कि इस कंट्री में मुझे ये टैरिफ तो एक चीज होगी जो आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा, इट कुड बी अ पैकेजिंग इशू, इट कुड बी अ लेबलिंग इशू, इट इज अ कलर कोडिंग इशू, एचएस कोड इशू, somebody said कि एचएस कोड ही नहीं है हमारे प्रोडक्ट का। सो एनीथिंग, जैसे कारपेट एक्सपोर्ट काउंसिल में इतना पुश किया गया कि कालीन KALEN करके वो लोग हैंडमेड का एक पूरा ब्रांड करके निकलवाना चाह रहे हैं, वो अब अप्रूव हो रहा है। तो एनीथिंग दैट द इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर, ये पोर्टल आप लोगों के लिए है, कॉमर्स मिनिस्ट्री की साइट पे आप जाके अपने व्यूज को दे सकते हैं। पीपल लाइक अस, ऐसा नहीं कि कोई सुन नहीं रहा है, वी आर रेगुलरली ऑब्जर्विंग सच इनपुट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। व्हेनेवर एफटीए साइन, सर आपको जैसे रावत सर ने बोला, सर बिना इंडस्ट्री कंसल्टेशन के, सपोज हमने कोई ऐसे प्रोडक्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी जो मुरादाबाद में बन रहा हो और वो इंडोनेशिया से आ गया, तो आपका मार्केट खत्म हो गया ना। तो बिना आपसे पूछे आप कभी कुछ करते ही नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली जब भी आपके पास कोई ईमेल आता है, एक्चुअली में एक्सपोर्टर से रिस्पॉन्स तब नहीं आता है जब सडनली इंपोर्ट आने लगेगा, तब इनका आँख ना कान खुलता है, यार ये क्या माल आ रहा है, ये सरकार ने बहुत गलत किया। जब आपसे मेल पे पूछा गया था कि आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, तब किसी ने जवाब नहीं दिया है। सो प्लीज हेल्प अस टू हेल्प यू, दिस एक्सरसाइज इज प्राइमरी टू हेल्प द इंडस्ट्री, राइट? So I think we can now close this discussion. तो मनोज जी, one question. आपने जैसे जो मार्केट रिसर्च किया था, are there any portals where we get the idea about the marketing aspect of that? I won't hear that. वो जो रिपोर्ट है ना EPCH की हम लोग की है, 129 प्रोडक्ट्स के लिए हमने EPCH के एक तो राजेश को सबको भेज दीजिएगा। What we'll do is we'll disseminate this PPT, but we have done a report with IFT. Okay. That report is there on our website. We have circulated it to the member exporter. We will disseminate the link
to all of you once again. Just go through it. That will help. Every sector में जेम्स में किस कंट्री में क्या कलर का मोती बिक रहा है वो तक मैंने एनालाइज करके रिपोर्ट में दिया हुआ है. एवरीथिंग इज देयर. आप प्लीज उसको यूज करिए. EPCH ने इतनी मेहनत से वो रिपोर्ट बनवाई है हम लोगों से. आप इट इज फॉर द इंडस्ट्री टू यूज इट. So please use that report. We'll be more than happy to reshare with you. Rajesh ji, आपने कभी बताया नहीं. I mean, like honestly, like as an exporter, I'm not aware that all the study has been done by. That is circulated again. वही तो क्या आपको मेल भेजे हैं. नहीं पर मेल में आपने इसका मार्केट का कुछ नहीं भेजा उसमें. नहीं लिंक है ना उसमें. मार्केट में आएगा लिंक आएगा. लिंक पे क्लिक करें तो होम रिपोर्ट दे. It is on the website. We'll send it. We'll send it. Yeah, please. That'll be nice. So thank you very much for coming to this very important discussion. Now, as you know, we have this show coming up, the Fashion Jewelry Accessory Show, which is there from 4 to 6 July at Expo Center Mart, as we explained last time. Those who were there in the last seminar, that this is a show specific to fashion jewelry accessory segment. If anybody still wishes to participate in the fair, you're most welcome to do that. You can note down the number. Everyone is having. You have the brochure. So the brochure is there. You can still contact us. And there is a promotional offer in that fair as well. Suppose if you are exhibiting in the fair and you want to invite any of your buyers from across the globe, you are free to do that. And we will offer the buyer these zone-wise reimbursements. That is, if a buyer is coming from say USA or Latin America, we will pay him $1,000 towards his air travel. And we will also offer him the hotel accommodation. And from Europe and from Middle East, the stars will be lower in those cases. So that is the most offer that is still going on. So if anybody is interested, please do contact us. So thank you once again for being here today. I would like to thank both our guest faculties, Tawana ji and Ajay ji, for sharing their thoughts and for the very insightful presentation that has been made. I hope you have gained from the same, and I will be sharing the links and the report to you. Now, before we close, I would like to present mementos to our guests. May I request Mr. Pasi to present the memento to Mr. Srivastava. May I request Mr. Malik to present the memento to Tawana. Thank you very much. We have arrangement for high tea. Please join us. Thank you very much.